Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. So, today we continue our journey through the prose section of your textbook snapshots with a chapter 3, Mother's Day, that is both humorous and deeply meaningful. This chapter is written by J.B. Priestley. He is known for his sharp social commentary and satirical style. So, before we begin, make sure to like this video if you found this helpful and insightful. Share it with your classmates and friends and subscribe to the channel so you never miss any update. So, and your supports actually helps me to bring better content for you every day. So, Mother's Day is a thought provoking drama which is written by J.B. Priestley. He is known for his sharp social commentary. This chapter humorously highlights the invisible labor, emotional burden, and unrecognized efforts of mothers in a household. So, this play is a humorous portrayal of the status of a mother in the family. Let's read to see how Mrs. Pearson's family react when she tries to stand up for her own rights. So ये स्टोरी मिसेस पियर्सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. मिसेस पियर्सन एक बहुत ही जेंटल और ओवरवर्कड लेडी हैं, मदर हैं, who is taken for granted by her husband and her children. Through a magical twist, and thanks to a strong and bold character, Mrs. Fitzgerald, her family learns a powerful lesson about respecting mothers, valuing their time and acknowledging their hard work. So this chapter uses wit, irony, and role reversal to show how families often ignore the sacrifices of mothers and how essential it is to treat them with love, dignity, and appreciation. So, by the end of the story, we understand that a mother is not just a caretaker, she is the emotional backbone of the family and she deserves equal respect, rest, and recognition, right? तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को डिटेल में, सॉरी प्ले को. सो यहाँ पर ये कुछ कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं बेसिकली. सो the play opens with a humorous yet meaningful portrayal of how a mother is often taken for granted by her own family. This drama shows us what happens when Mrs. Pearson, an overworked and underappreciated mother, finally decides to stand up for her rights with a little magical help from her neighbor, Mrs. Fitzgerald. तो पहली कैरेक्टर है इसमें मिसेस एनी पियर्सन. मिसेस पियर्सन, शी इज़ अ जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन वुमन इन हर 40s. शी वर्क्स हार्ड ऑल डे बट हर फैमिली डज नॉट वैल्यू हर एफर्ट्स. इनके हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन, इनकी बेटी है डॉरिस पियर्सन, इनका बेटा है साइरल पियर्सन और इनकी एक नेबर है मिसेस फिट्जराल्ड जो कि बोल्ड है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है और मिस्टीरियस नेबर है. शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड प्लेज अ की रोल इन चेंजिंग मिसेस पियर्सन्स लाइफ. So the action take place in the living room of the Pearson family. Pearson house in a suburban house in London, right? The setting is comfortable and well lived in, showing that this is a normal middle class family home और टाइम प्रेजेंट का है, राइट. सो सीन जो है ये इसका आफ्टरनून है इन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज इज ब्राइटली लिट. सो द लिविंग रूम है पियर्सन फैमिली का स्टेज पर. आफ्टरनून है, इट इज़ कंफर्टेबली फर्निश्ड, मच लिव्ड इन रूम in a small suburban semi-detached villa. If necessary, only one door need be used, but it is better with two. One up left leading to the front door and stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. There can be a muslin covered window in the left wall, possibly one in the right wall. Two, a fireplace is assumed. एक fireplace भी है fourth wall पर. And there is a settee up right and armchair down left and one down right. एक small table है जिसमें 2 chairs on either sides of it stands at the center. तो ओपनिंग सीन जो है वो पूरे एंटायर ड्रामा का मूड सेट करता है.
अब जैसे कर्टन जब रेज होते हैं, राइज अप होते हैं, व्हेन द कर्टन राइजेस, तो दोपहर का समय है, अर्ली ऑटम में, और स्टेज जो है वो उसमें काफ़ी रोशनी है. मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड, दे आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट अ स्मॉल टेबल. एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं ये. ऑन द टेबल दे आर 2 टी कप्स एंड अ पैक ऑफ कार्ड्स. मतलब 2 टी कप्स विथ सॉसर्स हैं और कार्ड्स हैं, पैक ऑफ कार्ड्स हैं. बिकॉज मिसेस फिट्जराल्ड हैज़ जस्ट फिनिश्ड टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्चून. मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन को उनका फ्यूचर बता चुकी हैं. सो मिसेस पियर्सन जो हैं वो बहुत ही प्लेजेंट हैं, बट वरिड लुकिंग वुमेन है, अपनी 40s की एज में है. इन दोनों की जो पर्सनालिटी है वो इनके अपीयरेंस से दिख रही है. जैसे मिसेस पियर्सन जो थोड़ी वरिड है, नर्वस है, उनकी वॉइस काफ़ी जेंटल है. मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो ओल्डर है इनसे, मिसेस पियर्सन से. वो काफ़ी हैवियर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सिनिस्टर पर्सनैलिटी की है. शी हैज़ अ डीप, स्ट्रॉन्ग, almost intimidating voice with perhaps a slight of Irish accent. And she is smoking. वो smoke कर रही हैं. And it is very important that these two should have sharply contrasting voices. Mrs. Pearson speaking in a light, flurried sort of tone with a touch of suburban cockney, perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish, perhaps. तो ओपनिंग सीन में बता दिया गया दोनों के पर्सनैलिटी के बारे में. एंड देयर इज़ अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन द टू women that hints at the major twist that is about to unfold. So the opening scene sets the mood for the entire drama and showing the difference between Mrs. Pearson's mild nature and Mrs. Fitzgerald's powerful and confident attitude. Right? चलो अब चैप्टर पढ़ते हैं. सबसे पहला डायलॉग है मिसेस फिट्जराल्ड का, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स. वो अपने कार्ड्स को समेटते हुए बोलती है. एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन. कुड बी अ गुड फॉर्चून, कुड बी अ बैड वन, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ. मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़. वो कहती हैं कि बस यही सब था जो मैं आपको बता सकती हूँ. मतलब मिसेस पियर्सन को ये बहुत कुछ बता चुकी है इनके डेस्टिनी के बारे में. अब ये अपने कार्ड समेटते हुए कहती हैं कि इतना ही मैं आपको बता सकती थी. किस्मत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, अब सब तुम्हारे ऊपर है और तुमको अपना फैसला करना पड़ेगा. मेकअप योर माइंड, और बस वही होगा जो तुम डिसाइड करोगे. तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, येस थैंक यू मिसेस फिट्जराल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड. आई एम श्योर इट्स अ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर. डिड यू लर्न दैट आर ईज टू. अब उन्होंने पूछा कि उन्होंने थैंक यू बोला मिसेस फिट्जराल्ड को. फिर उन्होंने बोला कि जैसे आप जैसा भविष्य बताने वाले पड़ोस में हो तो ये तो बड़ी ही वंडरफुल बात है कि आपने ये सब ईस्ट में सीखा है, मतलब ईस्ट में जाके सीखा है. तो वो कहती है, ये आई डिड 12 years आई हैड ऑफ इट विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर. He had learned a lot and I learned a more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने ये ईस्ट में जाके सीखा है. पूरे 12 साल बिताए वहाँ पर. वहाँ पे जो मेरे हस्बैंड थे वो, मतलब जो ओल्ड मैन, यानी कि उनके अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं ये, कि वो वहाँ पर लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर हुआ, मतलब वहाँ तक लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर की पोस्ट तक पहुँचे थे. और वहाँ उन्होंने बहुत कुछ सीखा और मैंने तो उनसे ज़्यादा सीखा. फिर वो वापस वही बात कहती हैं कि अब तुम फैसला कर लो मिसेस पियर्सन. एक बार के लिए पैर ज़मीन पर पटक दो और अपने घर की मालकिन बन जाओ. अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की बॉस बन जाओ. अब मिसेस पियर्सन जो थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती हैं, थोड़ा सा अपोलोजेटिकली, थोड़ा सा हिचकते हुए कहती हैं, दैट्स ईजियर सेड देन डन. बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, दे डोंट मीन टू बी. अब यहाँ पर वो कहती है, थोड़ा सा हेजिटेट होके अपोलोजेटिकली बोलती हैं कि कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है. और फिर भी मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ. मतलब वो अपनी फैमिली की बात कर रही है यहाँ पर कि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. चाहे वो कितने ही थॉटलेस हो, बेपरवाह हो, सेल्फिश हो, चाहे वो कितने ही मीन हो,
मतलब वो सब जानबूझ के तो नहीं करते ना, दे डोंट मीन टू बी। उस मतलब मिसेस पियर्सन को लगता है कि उनके जो हस्बैंड और जो उनके बच्चे हैं ये इतने सेल्फिश हैं, इतने इतने मीनफुल हैं, मतलब इतने मतलबी हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, मेरे लिए कोई इमोशंस नहीं है, थॉटलेस हैं। तो वो जानबूझ के नहीं करते ऐसा, चाहे वो कितने ही बेपरवाह हों, कितने स्वार्थी हों। लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस तरह का कोई फर्म डिसीजन तो बिल्कुल नहीं ले सकती। लेकिन मिसेस फिट्जराल्ड उनको बीच में टोक देती है, उनकी बात को कट कर देती है, कहती मे बी नॉट, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। उन्होंने बोला कि हाँ, हो सकता है वो जानबूझ के नहीं करते हो, लेकिन अगर वो तुम्हें ठीक से ट्रीट करना सीख जाए तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा कि वो तुम्हें ठीक से ट्रीट करना सीख जाएंगे। तो मिसेस पीटरसन बोलती येस आई सपोज इट वुड इन अ वे। तो वो बोलती है कि हाँ, एक तरह से तो शायद ठीक ही है, अगर वो सीख जाए कि मुझसे मतलब अपनी वाइफ से या अपनी मदर से अच्छे से ट्रीट करें वो लोग। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। हु इज़ बेटर फॉर बीइंग हु इज़ द बेटर for being spoiled? Grown man, lad or girl, nobody. You think it doesn't them good when you are run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life, it's the ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा बोल देती है। वो कहती है कि हाँ, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब तुम्हारे घर का कोई बड़ा सा ग्रोन मैन हो, तुम्हारा बेटा हो या बेटी हो, किसी का भी बिगड़ना ठीक तो नहीं है। कोई भी बिगड़े, चाहे वो ग्रोन अप मैन हो, आपका बेटा हो, बेटी हो, किसी का भी बिगड़ना ठीक तो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो उनके पीछे हमेशा भागती रहती हो, उनको हमेशा ओबे करती रहती हो, उनके ऑर्डर्स फॉलो करती रहती हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम तो घर की नौकरानी हो और वो रोज़ रात में घूमने निकल जाते हैं और तुम तो कभी नहीं जाती, तुम तो पूरे घर में अकेली रहती हो, तुम तो कभी कहीं घूमने नहीं जाती। क्या इससे उन्हें फ़ायदा होता है? नहीं। अगर वो इस तरह से स्पॉइल हो रहे हैं तो ये उनके लिए भी नुकसान वाली बात है। तुम सारा दिन घर में रहती हो, ये तुम्हारा भी नुकसान है और तुम्हारी फैमिली का भी नुकसान है, मतलब उन सबका नुकसान है। चाहे तुम्हारा हस्बैंड हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारी बेटी हो, सबको अपनी मदर, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑर्डर नहीं देना चाहिए, बल्कि और ना ही उन्हें ऐसा डर्ट की तरह, मिट्टी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। और तुम ये मत कहना कि तुम्हें समझ नहीं आता, क्योंकि मैं उससे भी ज़्यादा जानती हूँ जो तुमने मुझे बताया है। मतलब यहाँ पर इस वाले डायलॉग में मिसेस फिट्जराल्ड बिल्कुल सच्ची बात बोल देती है मिसेस पियर्सन की फैमिली की। हमें इतना बढ़कर पता चल गया है कि मिसेस पियर्सन जो हैं, ये सबके इनके घर में जो इनके अलावा 3 लोग रहते हैं, इनका हस्बैंड और इनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, वो हमेशा इनको ऑर्डर देते रहते हैं, ये उनके पीछे भागती रहती हैं, उनके काम करती रहती है, वो इनको इनको मतलब दे आर एक्चुअली टेकन हर फॉर ग्रांटेड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो इनकी इज्जत नहीं करते, वो अपना घूमने चले जाते, पर इनकी कोई लाइफ नहीं है, ये बिल्कुल नौकरों की तरह रहती हैं। तो यहाँ हमें पूरा पता चल गया है कि मिसेस पीटरसन की फैमिली उन्हें कितनी बुरी तरह इल ट्रीट करती है, उनसे उनसे मिसबिहेव करती है। सो मिसेस पीटरसन थोड़ा सा संकोच के डिब्बे इसलिए कहती है आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मतलब बस थोड़े थोड़े इशारे देती रहती है। मिसेस पेरेंट हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। मिसेस पियर्सन मतलब वो कहती है ना कि मैं उन्हें इशारे देती रहती हूँ, हिंट देती रहती हूँ कि तुम जो ये बिहेव करते हो ये अच्छा नहीं है। मतलब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जराल्ड से कह रही है कि मैं अपनी फैमिली को ये वो चीज़ बोलती हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती है हिंट, उन्हें हिंट की नहीं ज़रूरत है, तुम्हारे परिवार के लोगों का हिंट से काम नहीं चलेगा मिसेस पियर्सन, उनको तो बिल्कुल डांटना पड़ेगा, उन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा अब। तो मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली मतलब उलझन में कहती हैं आई सपोज इट इज़, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। वो कहती हैं कि हाँ, मेरी फैमिली को, मतलब मेरी फैमिली जो हस्बैंड और बच्चे, इनको थोड़ा डांटने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ना किसी तरह की भी लड़ाई पसंद नहीं है। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। और सबसे मुश्किल ये है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। अगर मुझे लड़ाई भी करनी है या उन बच्चों को डांटना है, अपने हस्बैंड को समझाना है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin.
वो कहती है कि मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं आज सब कुछ साफ साफ कह दूँगी कि ये जो तुम मेरे साथ जो ये बिहेवियर रखते हो, मेरे से जो मुझसे जो जिस तरह से बात करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करूँ, मुझसे समझ ही नहीं हो पाता। शी ग्लैंसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक। अब वो घड़ी की तरफ देखती है और एकदम टाइम देख के वो परेशान हो जाती है, कहती है ओ ओ गुड ग्रेशियस, कहते हैं अरे बाप रे, लुक एट द टाइम, टाइम देखो, नथिंग रेडी एंड दे विल बी एट होम, दे विल बी होम एनी मिनट, प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। अब कहती है टाइम देखो, कुछ भी तैयार नहीं है, वो लोग कभी भी घर आ जाएंगे और शायद बाहर जाने की भी जल्दी होगी, मतलब टाइम इतना हो गया और उसने डिनर मतलब उसने मील प्रिपेयर नहीं किया है, मतलब डिनर जो है डिनर का टाइम हो गया होगा क्योंकि सबका घर आने का समय हो गया है, तो वो किसी भी मिनट घर आते होंगे और मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया है और वो उन्हें वापस जाने की भी जल्दी होगी। एज शी इज़ अबाउट टू राइज मिसेस फिट्जराल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल पुल्स हर डाउन। अब जैसे ही वो उठने लगती है मिसेस फिट्जराल्ड उनका हाथ पकड़ कर उन्हें वापस बैठा देती है कि बैठे रहो तुम यहाँ पर। वो कहती है लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस, दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, स्टार्ट नाउ। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। लेकिन वो कहती कि रहने दो, एक दिन इंतज़ार करने दो उन्हें, वो एक दिन इंतज़ार कर लेंगे और ख़ुद सब कुछ मैनेज कर लेंगे, यही मौका है, यहीं से पैर पटक दो, अभी से शुरू करो। उसको इतना कह के वो एक नई सिगरेट जला लेती हैं और अभी अभी उन्होंने एक पुरानी मतलब एक सिगरेट बुझाई थी, ख़त्म ही की थी, और दूसरी भी जला लेती हैं। अब मिसेस पियर्सन को तो हो गई टेंशन, क्योंकि वो तो ऐसी है नहीं कि वो अपनी फैमिली के ऑर्डर्स को ओबे ना करें या टाइम पर उनको मील प्रिपेयर करके ना दे या उनके काम ना करके दें, तो वो एकदम एम्बेरस्ड हो जाती है, एकदम घबरा जाती हैं। वो कहती मिसेस फिट्जराल्ड, आई नो यू मीन वेल। वो कहती कि मैं जानती हूँ आप मेरे अच्छे के लिए मेरी भलाई चाहती हैं, एंड इन फैक्ट आई अग्री विथ यू, मतलब और अगर सच कहूँ तो मैं आपसे पूरा पूरा अग्री भी करती हूँ, बट आई जस्ट कांट एंड आई इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी। वो कहती है पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, और मैं वादा और मतलब मैं अगर कोशिश भी करूँ तो मेरी कोशिश भी बेकार है, इट्स नॉट यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, मतलब अगर आप कोशिश भी करो तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मतलब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा कि मैं उनके टाइम पर काम ना करके दूँ फैमिली के अपने। इफ़ आई प्रॉमिस यू it would be really have it out with them, I know it wouldn't be able to keep my promise। वो कहती है कि अगर मैं आज आपको प्रॉमिस कर भी दूँ, मैं आज सब साफ कह दूँगी तो भी मेरा अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊँगी, मतलब मैं अपनी फैमिली से कभी नहीं बोल पाऊँगी कि वो मेरा फ़ायदा ना उठाए, राइट। अब मिसेस फिट्जराल्ड बोलती हैं तो फिर मुझे करने दो, देन लेट मी डू इट। आप नहीं कर सकती ना मिसेस पियर्सन, मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड हो जाती है, थोड़े से घर बढ़ाकर बोलती है ओ नो, थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जराल्ड, बट दैट वुडंट डू एट ऑल। कहते नहीं नहीं, मतलब थैंक यू बोलती है मिस फिट्जराल्ड को, पर वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप कुछ करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स that they would resent it at once and wouldn't listen, and really I couldn't blame them। वो कहती है कि किसी और का मतलब किसी बाहर के इंसान का बोलना अच्छा नहीं लगेगा और वो सुनेंगे भी नहीं, और मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकती। आई नो आई ऑट टू डू इट, कहती कि मुझे ही कहना चाहिए और मुझे ही कहना होगा, बट यू सी हाउ इट इज़, मतलब आप खुद ही देख रही हैं कि कैसे मैं कहूँ। शी लुक्स अपॉलोजेटिकली क्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली, मतलब वो मायूस सी मुस्कान के साथ मेज के दूसरी तरफ चली जाती है, मेज के पार उनकी ओर देखती है। मिसेस फिट्जराल्ड जो कि बहुत कूल वे में होती है, काम काम होके कहती हैं यू हैवंट गॉट द आइडिया। कहते तुम्हें तो असली बात समझ ही नहीं आई है, मतलब मैंने बोला ना कि मैं करती हूँ तो इसके पीछे एक असली बात है, तो तुम्हें नहीं समझ में आई है। अब मिसेस पियर्सन थोड़ी सी बिविल्डर्ड हो जाती है, थोड़ी चौके तो कर कहती है ओ आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू डू, लेट यू डू इट। कहते अरे माफ़ करना, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप चाहती हैं कि आप ही सब बोल दें मेरी फैमिली से। तो मिसेस फिल्टर बोलती है आई डिड, बट नॉट एज मी, एज यू। कहते हाँ हाँ मैं ही बोलूँगी, बट मैं बन के नहीं बोलूँगी, मैं तो आपको मतलब मिसेस पियर्सन बन के बोलूँगी, मैं ही आपकी फैमिली से बोलूँगी, लेकिन मिसेस फिट्जराल्ड बन के नहीं, मिसेस पियर्सन बन के। तो यहीं से कहानी में आ जाएगा ट्विस्ट। मिसेस पियर्सन कहती है बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मीन। वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, आप
मैं कैसे हो सकती हूँ? आप मैं तो बन नहीं सकती, मतलब मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस पियर्सन कैसे हो सकती हैं? अब वो बहुत ही कामली, बहुत ही कूली कहती है, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। वो कहते हैं कि हम ना अपनी जगह बदलेंगे, बल्कि जगह नहीं, हम तो अपने शरीर भी बदलेंगे। मैं आपकी तरह दिखूंगी और आप मेरी तरह दिखोगे। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, तो नामुमकिन है। हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, कहते तुम्हें कैसे पता है ये इम्पॉसिबल है, क्या कभी कोशिश की है? नो ऑफ कोर्स नॉट, कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कोशिश की है। तो वो कहती हैं, एकदम कामली कहती हैं, आई हैव नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, वॉन्ट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू। वो कहती है कि मैंने किया है कुछ समय पहले, हाँ ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, पर जितनी देर चाहिए उतना तो टिक जाएगा, और उतनी ही देर में हम जो हम करना चाहते हैं वो हम कर लेंगे, मतलब इतना तो टिक जाएगा ये मैजिक जितना हमें हमारा काम हो जाए। लर्न इट आउट ईस्ट, ऑफ कोर्स दे आर अप टू ऑल दिस ट्रिक्स। वो कहती है कि मैंने ये सब ईस्ट में सीखा है, वहाँ ऐसे मैजिक आम है, ऐसे ट्रिक्स आम हैं। सो शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, मतलब वो उसके हाथ पकड़ लेती हैं, एंड कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, मतलब उनको मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन के दोनों हाथ पकड़ लेती हैं टेबल के उस पार से ही, और अपनी सिगरेट को मुंह में ले लेती हैं और कहती हैं, गिव मी योर हैंड्स डियर, और कहती है अपना हाथ दो, अपने हाथ आगे बढ़ाती हैं और वो कहती है अपने हाथ मुझे दो, दोनों हाथ पकड़ के मुंह में सिगरेट डाल के और दोनों हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती हैं। मिसेस पियर्सन थोड़ा सा हेजिटेंटली ड्यूबियसली बोलते, वेल आई डोंट नो, इज़ इट राइट, मतलब मुझे नहीं पता क्या ये सही है जो हम कर रहे हैं। इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, जस्ट डू जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। अब वो कहती है कि यही आपका इकलौता चांस है, अब कर लिया तो कर लिया, फिर मौका नहीं मिलेगा, चलो अपने हाथ मुझे दो और चुप रहो 1 मिनट के लिए और कुछ मत सोचो, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। और वो उसके हाथ ले अपने हाथ में ले लेती और कहती है, नाउ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, एंड दे स्टेयर एट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और मिसेस फिट्जराल्ड कुछ मटरिंग करती है, कुछ बड़बड़ाती है, अर्शटाटडम अर्शटाटडम अर्शटाट, क्या ये कुछ मंत्र है, तो अर्शटाटडम अर्शटाटलम अर्शटाटलम डम वोना, ऐसे करके कुछ मंत्र बोलती हैं। अब ये जो छोटा सा सीन है, दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। अब ये छोटा सा सीन बहुत ही मतलब ये बहुत ही केयरफुली एक्ट हुआ है। वी आर अज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज़, और हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि जो पर्सनैलिटीज़ है वो बॉडी को बिल्कुल चेंज कर देंगे। आफ्टर द स्पेल, आफ्टर after the spell has been spoken, both women still grasping hands, so go legs as if the life were out of them. अब ये वो मंत्र बोलते हैं, स्पेल करते हैं, बोले जाते हैं, दोनों औरतों में से जिन्होंने अपने हाथ अभी पकड़े हुए थे उनके अंदर से लाइफ बाहर आती है। देन बोथ कम टू द, मतलब दोनों की बॉडी से एकदम लाइफ निकल जाती है, फिर एकदम से आ जाती है, मतलब जो स्पिरिट से दोनों की एक दूसरे की बॉडी को छोड़ती है और फिर वापस से मतलब एक्सचेंज होकर एक दूसरे की बॉडी में आ जाती है। बट विद द देन बोथ कम टू लाइफ, मतलब दोनों की शरीर में से लाइफ निकल जाती है, फिर बाद में दोनों की बॉडी में लाइफ आ जाती है, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ अदर, एक दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस, दोनों एक दूसरे की वॉइस को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और मैनरिज्म जो होता है एक दूसरे को वो भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। अब जो मिसेस पियर्सन है वो बोल्ड बन गई और डोमिनेटिंग बन गई, क्योंकि मिसेस पियर्सन एक्चुअली कौन है, मिसेस फिट्जराल्ड है, और मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो नर्वस और फ्लटरिंग हो गई, क्योंकि अब वो तो एक्चुअली में कौन है, वो मिसेस पियर्सन है। अब मिसेस पियर्सन बोलती है, नाउ विद फिट्जराल्ड्स पर्सनैलिटी, मतलब मिसेस पियर्सन जिनके अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की पर्सनैलिटी है, वो वह उसी तरह से बात करती है, मिसेस फिट्जराल्ड की तरह कहती है, सी व्हाट आई मीन डियर, शी नोटिस द सिगरेट हेयर, यू डोंट वांट दैट, शी स्नैचेस इट एंड पुट इट इन हर ओन माउथ पफिंग कंटेंटेडली। अब वो क्या करती है, वो वो कहती है कि देखो मेरा मतलब है, फिर वो सिगरेट पे ध्यान देती, कहती है अरे नहीं नहीं तुमको तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिगरेट तो मिसेस पियर्सन के मुंह में आ गई है, मतलब सॉरी, जिस स्पिरिट में मिसेस पियर्सन की बॉडी है, सॉरी स्पिरिट है, उसके अंदर सिगरेट थी, तो लेकिन मिसेस
मिसेस पियर्सन तो सिगरेट पीती नहीं है, बॉडी भले ही मिसेस फिट्जराल्ड की हो, पर उन्हें तो ज़रूरत नहीं, तो वो उनके मुंह से निकाल के अपने मुंह में डाल लेती है, फिर वो छीन लेती है और अपने मुंह में डाल लेती है और फिर वो पफ करती है, मतलब सिगरेट पीती है। मिसेस फिट्जराल्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी लुक्स डाउन एट हर सेल्फ। मिसेस फिट्जराल्ड जो कि आप मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में है, वो अपने आप को देखती हैं और वो देखती है कि उनकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई है और उसमें उनकी एक चीख भी निकल जाती है मतलब मिसेस पियर्सन जो डर गई हैं अपनी बॉडी देख के कि ये मैं कैसी बन गई हूँ। सो मिसेस फिट्जराल्ड जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी कहती है ओ इट्स हैपेंड, अरे हो गया ये, तो मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअल में कौन है, मिसेस फिट्जराल्ड, वो कहती है ऑफ कोर्स इट हैपेंड वेरी नीटली, डिडंट नो इट आई हैड इट इन मी। तो वो मतलब वो थोड़ी सी शॉक होके कहती है ना, एकदम अमेज्ड, कह रही सच में हो गया, तो कहती है हाँ बिल्कुल हो गया और बढ़िया तरीके से हो गया, वेरी नीट, और मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं ये कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जराल्ड अलार्म्ड, बट वट एवर शेल आई डू मिसेस फिट्जराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। तो वो कहती है कि ठीक है, बट अब जो भी, मतलब मैं जो भी करूँ मिसेस फिट्जराल्ड, जॉर्ज और बच्चे तो मुझे कभी इस तरह से नहीं देख पाएंगे, मतलब अब मैं क्या करूँ मिसेस फिट्जराल्ड, जॉर्ज और बच्चे मुझे इस हालत में कैसे देखेंगे। तो मिसेस पियर्सन स्टर्न होके बोलती है दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स अ पॉइंट, कि वो तो नहीं करेंगे ना, वो तो तुम्हें नहीं देंगे, यही तो पॉइंट है। दे विल हैव मी टू डील विथ, उन्हें मुझसे डील करना पड़ेगा। मतलब मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी में है, कह रही अरे बच्चे और हस्बैंड मेरा ऐसे मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कह रहा तुमको तो देखेंगे नहीं ना, वो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मुझसे डील करेंगे। और यही यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, ट्विस्ट है, कि मिसेस पियर्सन की बॉडी में जो मिसेस फिट्जराल्ड बैठ गई हैं जाकर, अपनी पर्सनैलिटी उन्होंने घुसा दी है, उनके मिसेस पियर्सन की फैमिली, उनके हस्बैंड और उनके बच्चों को जो कि इतने ज़्यादा स्पॉइल्ड हैं, उन्हें डील करना पड़ेगा किससे मिसेस फिट्जराल्ड से। एंड दे वोंट नो इट, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें मुझसे डील करना है, मुझसे निपटना है। मिसेस फिट्जराल्ड जो कि एक्चुअल में मिसेस पियर्सन है, वो भी बेचारी चिंता में है। बट वॉट इफ़ वी कांट चेंज अ बैक, इट कुड बी अ टेरिबल, कहती है अगर हम वापस नहीं बदल पाए तो क्या होगा, ये तो बहुत टेरिबल होगा। तो वो कहती है हेयर स्टेडी मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, कहते हैं अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी भी पड़ी तो उसमें बुरा क्या है, बल्कि मेरी लाइफ तो ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारे तो मज़े आ जाएंगे। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, तो तुमको तुम्हारी लाइफ में इतना फ़न नहीं आएगा जितना तुमको मेरी लाइफ जी कर में इतना फ़न आएगा। मतलब अगर तुम मेरी ज़िंदगी जीती हो तो इतना बुरा नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें तो फ़न आएगा, मज़ा आएगा तुमको तो येस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनी बडी एल्स। मिसेस फिट्जराल्ड बोलती लेकिन हाँ मैं कोई और नहीं बनना चाहती, मैं ही रहना चाहती हूँ। बड़ी सीधी औरत है ये मिसेस पियर्सन देखा जाए तो। अब मिसेस पियर्सन यानी कि मिसेस फिट्जराल्ड और ये मिसेस फिट्जराल्ड यानी कि मिसेस पियर्सन। अब ये कहते हैं नाउ स्टॉप वरिंग, अब चिंता करना छोड़ो, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, वापस से बदलना बहुत आसान है, मेरे को आता है, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, मैं कभी भी कर सकती हूँ जब भी हम चाहें, मैं कभी भी कर सकती हूँ। कहते वेल डू इट नाउ, कहते अभी कर दो, अभी कर दो, करना चाहती हूँ तो। मतलब मिसेस पियर्सन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रही है किसी दूसरे की बॉडी में। कहते नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, कहते नहीं नहीं अभी तो नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हारे परिवार से बात करूँगी, दैट्स द आइडिया, यही मेरा आइडिया है, ठीक है ना, यही तो प्लान था हमारा। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, तुम्हें नहीं पता था ना कि उनसे कैसे डील करना है, उनसे शुरू कैसे करना है, तुमने बोला, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि उनके साथ क्या करना है। सो मिसेस फिट्जराल्ड कहते हैं बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो मिसेस फिट्जराल्ड जो कि एक्चुअल में मिसेस पियर्सन कहती है पर मैं क्या करूँगी तब तक। तो मिसेस पियर्सन कहती है गो इन टू माई हाउस फॉर अ बेट, देयर इज़ नो बडी देयर, कहते जाओ तुम मेरे घर जाओ, वहाँ कोई नहीं है, देन पॉप बैक, वापस आ जाना, एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और देखना कि हम कैसे कर रहे हैं, और तुम्हें मज़ा आएगा, यू ऑट टू इन्जॉय इट, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, कहते अभी हमें चलना चाहिए, इससे पहले कोई आए, चलो चलते हम। अब मिसेस फिट्जराल्ड जो कि एक्चुअल में मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी लेके बैठी है, कहती कि आई सपोर्ट दैट द बेट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। अब मिसेस पियर्सन चली जाती, कहती इट विल बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो डियर, कहते बहुत मज़ा आने वाला है, चलो अब तुम जाओ, देखते हैं अब क्या होगा। So Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through a door light
लेफ्ट टू हर्सेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे। मिसेस फिट्जराल्ड जो कि एक्चुअल में पियर्सन है, बेचारी चली जाती है और मिसेस पियर्सन सिगरेट पीती हुई चली जाती है, सिगरेट पीती हुई जाती है और एक के बाद दूसरी सिगरेट लाइट अप कर देती है एंड बिगन्स लेइंग आउट द कार्ड्स ऑफ पेशेंट ऑन द टेबल। और वो जो कार्ड्स है उनको भी वहाँ पर छोड़ जाती है। मतलब मिसेस फिट्जराल्ड भी नर्वसली चली जाती है। मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअल में फिट्जराल्ड है, वो स्मोकिंग कॉन्फिडेंटली स्मोक करते हुए कार्ड्स को अरेंज करने लग जाती है। अब आएगा सीन 2, सॉरी सीन 2 नहीं है, मतलब अब एक अगला सीन आएगा, सीन यहाँ पर शिफ्ट होगा। सो आफ्टर फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन जो कि मिसेस पियर्सन की बेटी है कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट। अब कुछ टाइम बाद डोरिस पियर्सन आती है बहुत जल्दी में। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, थोड़ी अच्छी दिखती है, इन हर अर्ली 20s, वो अपनी अर्ली 20s में है। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड। कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छी दिखती है, अगर वो इतनी स्पॉइल्ड ना हो तो उससे मिलकर हर किसी को अच्छा लगेगा, राइट। सो डोरिस कहती है बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मतलब वो कुछ बोले उससे पहले ही, मतलब वो कुछ करे उससे पहले वो बोलती है मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आई मस्ट वेयर इट टू नाइट। वो कहती है कि मम्मी आपने मेरा पीला सिल्क वाला ड्रेस आपने आयरन किया, आपने उसको प्रेस किया, आज रात मुझे वही पहना है। शी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग एंड इट्स अस्टाउंड। उसके बाद वो देखती है, मतलब पहले वो बोल देती है, उसके बाद वो देखती है कि क्या हो रहा है, और वो थोड़ी सी अस्टाउंड हो जाती है, थोड़ी सी वो उसका काम नहीं हुआ है तो थोड़ा सा उसको अजीब लगता है कि अरे मेरा काम नहीं हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग, अपनी मदर से बोलती है अरे आप क्या कर रहे हैं। एंड शी मूव डाउन लेफ्ट सेंटर, और लेफ्ट सेंटर में आ जाती है और कहती है कि अरे आप कर क्या रहे हो। सो मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस। अब मिसेस पियर्सन अपनी ऑर्डिनरी वॉइस यूज़ करती हैं, बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग, बट उनका मैनर बहुत अलग है, फ्लटरिंग नहीं है और अपॉलोजेटिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का काम नहीं करके रखा ना। उनकी बेटी ने उनको बोला होगा कि उसका येलो सिल्क ड्रेस आयरन करके रखना, प्रेस रख करके रखना, जो कि उसने नहीं रखा है। अगर यहाँ पर एक्चुअल मिसेस पियर्सन होती तो पहली बात तो वो कर ही रखती, और बाई चांस अगर नहीं हुआ होता तो वो भाग भाग कर रही होती, बहुत ही अपॉलोजेटिकली बोल रही होती कि सॉरी मैं कर नहीं पाई टाइम पर। लेकिन यहाँ पर मिसेस पियर्सन जिनके अंदर एक्चुअल में कौन है, मिसेस फिट्जराल्ड है, वो अपनी ऑर्डिनरी वॉइस को यूज़ करती है। वो बिल्कुल फ्लटरिंग नहीं होती, अपॉलोजेटिक नहीं होती, बल्कि कूल और इंसेसिव होती है। वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है अपनी बेटी की, नॉट इवन लुकिंग, वो ऊपर देखती भी नहीं है और कहती है व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग। अब यहाँ से शुरू होगा असली फ़न। तो मिसेस पियर्सन उसकी तरफ देखती भी नहीं है, कहती तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं सीलिंग पर वाइट वॉश कर रही हूँ। अब ऐसा जवाब सुन के मिसेस पियर्सन से डोरिस चौंक जाती है, स्टिल अस्टाउंड, एकदम चौंक जाती है कि अरे बट यू आर स्मोकिंग, आप स्मोक कर रहे हो मम्मी। तो उसकी मम्मी तो कभी सिगरेट नहीं पीती थी। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसकी मदर बैठ कर सिगरेट पी रही है, एक तो उसका काम नहीं किया है, उसका सिगरेट प्रेस करना था, उसको पार्टी में जाना है, वो एक तो काम नहीं करके रखा, ऊपर से उसकी मदर सिगरेट पी रही है और जो वो बोल रही है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है उसकी मदर। तो वो एकदम शॉक हो जाती है, कहती है आप सिगरेट पी रहे हो। दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर। तो कहती है हाँ हाँ सिगरेट ही पी रही हूँ मैं, कोई कानून तो नहीं तोड़ रही हूँ, है ना। बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक। अब वो बोलती कि मैंने तो सोचा था कि आप सिगरेट नहीं पीते हो। देन यू थॉट रॉन्ग, कहते तो तुम गलत सोच रही थी कि मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, मैं तो पीती हूँ, देखो मैं पी रही हूँ। आर वी हैविंग टी इन द किचन। अब वो पूछती है कि भाई चाय रेडी है क्या, क्या हम किचन में चाय पी रहे हैं, मतलब आपने चाय रेडी की है क्या। तो वो कहते हैं हैव इट वेयर यू लाइक डियर, मतलब ठीक है किचन में ही क्यों, जहाँ मन करे वहाँ पी लेना डियर। अब डोरिस को आ जाता गुस्सा, एक तो उसका ड्रेस रेडी नहीं है, ऊपर से चाय भी नहीं बनाई है, ऊपर से सिगरेट पी रही है उसकी मम्मी, गुस्सा आ जाता है उसको। कहती है डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी, कहते हैं आपका मतलब क्या है कि चाय अभी तक बनी नहीं है। तो कहती है योर्स इज़ नॉट, तुम्हारी नहीं बनी है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, मैं तो अपनी बना कर पी चुकी हूँ। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लेरेंडॉन। वो कहती है कि मैं तो अपनी बना कर पी चुकी हूँ, तुम्हारी नहीं बनी है, शायद मैं बाहर जाऊँ और क्लेरेंडॉन एक फैंसी होटल है वहाँ पर जाकर मैं खाना भी खा लूँ, तो मैंने तो शायद
मैंने तो कुछ बनाया नहीं है, मैं तो बाहर जाऊँगी शायद। अब डोरिस यहाँ पे बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, उसको बिल्कुल बिलीव नहीं होता अपने कानों पर भी कि क्या सुन लिया उसने, मतलब हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स। उसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि उसके कान क्या सुन रहे हैं। कहती हु माइट, कौन जाएगा होटल में खाना खाने। कहती आई माइट, हु डू यू थिंक, मैं जाऊँगी और कौन जाएगा, पूछ लिया उसने, मैं और कौन। अब डोरिस बिल्कुल शॉक्ड है, स्टेयरिंग एट हर मदर, अपनी मदर को एकदम ध्यान से देखती है वो। मम व्हाट्स अ मैटर विथ यू, कहती मम्मी आपको क्या हो गया है। कहते डोंट बी सिली, कहते क्या बकवास करी, बकवास मत करो तुम। अब डोरिस इनडिग्नेंटली, मतलब बहुत ही शॉक्ड हो गई है, बहुत ही उसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो कहती है इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, एंड all I must say, it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. तो यहाँ पे डोरिस कहती कि मैं पागल थोड़ी हुई हूँ, बल्कि मैं तो एक मिनट, हाँ, एक सेकेंड, यस, एंड डिड यू हेयर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क। वो कहती कि अरे मैं थोड़ी पागल हुई हूँ, मैंने तो बस इतना ही कहा है कि जब मैं काम कर रही थी पूरा दिन, तो आपको इतना भी चिंता नहीं हुई कि आप मेरे लिए चाय बना लो। मतलब मैं बाहर थी, काम कर रही थी सारा दिन से, पूरा दिन काम करके आई हूँ मैन, यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी, और आपने मेरी चाय बना के भी रेडी नहीं रखी। एंड डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, और आपने सुना कि मैंने क्या कहा था आपसे कि मेरी येलो सिल्क ड्रेस प्रेस कर देना। और मतलब आपने तो मेरे लिए चाय भी नहीं बना के रखी और येलो सिल्क ड्रेस भी नहीं प्रेस करके रखी, और आपका बर्ताव ज़रा बहुत अजीब सा है। तो मिसेस फियर्सन बोलती है नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड। कहते मुझे तो कभी पसंद नहीं आया तुम्हारा बर्ताव, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। तो यहाँ मिसेस फियर्सन कहती है कि नहीं अब पसंद नहीं है क्या, मुझे तो कभी पसंद ही नहीं था। अब डोरिस और गुस्से में आ जाती है, कहती है ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट, सो आई वॉन्ट इट आयरन्ड। अब वो कहती है कि तुमको, अच्छा ये ड्रेस के बारे में बोल रहे कि डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो ड्रेस। वो पूछती है कि आपने मेरी येलो ड्रेस के बारे में सुना मैंने जो कहा। कहते नहीं, तुम्हें तो वो पसंद नहीं था ना येलो ड्रेस, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो कहती है कि वो अपने लिए कहती है कि मुझे तो बहुत पसंद है वो, और मैं आज रात को वही पहनने वाली हूँ, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप उसको आयरन कर दो। कहते वांटेड आयरन, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू डू, आयरन इटसेल्फ। अब वो कहते मैं आयरन कर दूँ, तुम समझती क्या हो भाई, खुद कर लो ना अपना काम, खुद कर लो, अपनी कपड़े आयरन करने प्रेस करने जो भी करने खुद से कर लो। कहते नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। कहते नहीं, आप ही तो हमेशा मुझे मेरे कपड़े आयरन करके देती हैं, हमेशा से आप ही करती हैं। कहते वेल दिस टाइम आई डोंट, ठीक है मैं करती थी, इस बार नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश मी टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मुझसे मत ये कहना कि तुम बहुत मेहनत करती हो ये वो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू डोरिस पियर्सन, कि तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितना काम करती हो डोरिस पियर्सन, मुझे पता है तुम कितनी मेहनत करती हो। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू एंड गेट नो वेजेस नॉट थैंक्स फॉर इट। फिर वो अपने काम के लिए बोलती है कि मैं तो तुम्हारे मुकाबले दुगना काम करती हूँ और उसके बदले ना मुझे कोई तनख्वाह मिलती, ना कोई मुझे थैंक यू बोलता है। वो एंड वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, और तुम अपना वो येलो सिल्क क्यों पहन रही हो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो तुम्हें कहाँ जाना है रात में। तो कहती आउट विथ चार्ली स्पेंस, सक्सल के लिए बोलती है वो, मतलब इतनी वो थोड़ा मुंह बना के बोलती है कि मैं चार्ली स्पेंसर के साथ बाहर जा रही हूँ। तो उसकी मदर पूछती क्यों क्यों जा रही हो तुम। मतलब यहाँ पर सही एकदम सीन चल रहा है बेटी और मदर का। बेटी एकदम शॉक्ड है कि मेरी मदर ने आज पहली बार मुझे काम नहीं करके दिया, ऊपर से मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मेरा मेरा कहना नहीं माना, ऊपर से अब वो मुझे डांट भी रही है, मुझसे पूछ भी रही है कि कहाँ जाना है, क्यों करना है, खुद से कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ये पूछती है कि तुम्हें क्यों जाना है, तो ये इरिटेट हो जाती है डोरिस। अब वो गुस्से में बोलती है वाई व्हाट द मैटर विथ यू, वाई शुडंट आई go out with Charlie Spence, if he asks me and I want to any objections, go on, you might as well tell me। अब यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती, कहती क्यों क्यों क्या हो गया ये,
क्यों क्यों पूछे जा रहे हो, क्या हो गया आपको, क्या मैं चार्लीज फ्रेंड्स के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती, जबकि मैं जाना चाहती हूँ, मतलब उसने मुझे बुलाया है और मेरा भी कोई मन है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बोलिए। और आज तो आप सभी बोल दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मैं चार्लीज फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ तो। अब यहाँ पे मिसेस पियर्सन थोड़ा सिवियरली, थोड़ा सा सहज, सख्त सख्त स्ट्रिक्टली बोलती हैं, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्लीज पेंस बट बक टीथ एंड हाफ विटेड। वो कहते हैं कि तुम्हें इस चार्लीज पेंस से ज़्यादा मतलब बेहतर कोई नहीं मिलता, जो तुम्हें इसके साथ ही जाना है, चार्लीज पेंस के साथ जाना है, तुम्हें इससे कोई बेहतर नहीं मिलना। मैं तो मैं तो चार्लीज पेंस के साथ मर मर के भी नहीं जाना चाहूँगी। मतलब यहाँ पे मिसेस पियर्सन अपने लिए कहती है कि मैं तो चार्लीज पेंस के साथ जब मैं मर जाऊँगी ना, तब भी उसके साथ नहीं दिखना चाहूँगी। मतलब वो इतना बुरा लगता है। उसके टीथ काफ़ी बक है, बक मतलब आगे की तरफ निकले हुए हैं, हाफ विटेड है वो, मतलब दिमाग भी उसका पूरा काम नहीं करता। तो यहाँ पर ये चार्लीज पेंस का ये मजाक उड़ाती है मिसेस पियर्सन, मतलब मिसेस फिट्जराल्ड, कि तुम्हें ये चार्लीज पेंस ही मिला है पूरी दुनिया में, इतने सारे लड़के, इससे कोई बेहतर ढूंढ लो। ये दिमाग से भी मुझे इतना तेज़ नहीं लगता, देखने में भी इतना अच्छा नहीं है, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन इस जैसे लड़के के साथ तो कभी मैं नहीं जाती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कभी नहीं जाती, तुम्हें यही लड़का मिला है। तो डोरिस को थोड़ा बुरा लगता है, कहती ही इज़ नॉट, कहते नहीं वो ऐसा नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, व्हेन आई वॉज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्लीज पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। वो कहती है अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती ना, तो मैं तो चार्लीज पेंस से तो अच्छा ही कोई ढूंढती। मतलब यहाँ पे मदर अपनी बेटी को कह रही है कि अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती और मुझे इतनी लिबर्टी, इतनी फ्रीडम मिली होती, तो मैं चार्लीज पेंस से तो कोई अच्छा ही लड़का ढूंढती। और अगर इससे अच्छा कोई लड़का नहीं मिलता ना, तो मैं खुद को ही एकदम निकम्मा मान लेती कि ये मेरे बस की कुछ नहीं है। अब डोरिस को आ जाता है गुस्सा, एकदम रो जाती है, कहती है ओह शट अप, अपनी मम्मी को एकदम चुप करा देती, कहती है अरे चुप कर जाओ बस, बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हो और मुझे भी बोल रहे हो कि अगर मुझे चार्लीज पेन से अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है तो फिर मैं भी बेकार हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। सो रोने लग जाती है वो। सो डोरिस रन आउट लेफ्ट मिसेस पियर्सन चक्कर्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। अब यहाँ पर डोरिस जो रोते हुए लेफ्ट साइड से बाहर निकल जाती है। अब मिसेस पियर्सन थोड़ा सा हंसती हैं, उन्हें मज़ा आता है कि बेटी को तो ठीक कर दिया है, और अपने कार्ड्स को इकट्ठा करने लग जाती है। अब कुछ ही देर में साइरल पियर्सन आ जाएगा। आफ्टर अ मोमेंट साइरल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट एंड ही इज़ द मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। ये साइरल जो पियर्सन है ये डोरिस का भाई है, यानी कि मिसेस पियर्सन का बेटा है। और आप ये मान लीजिए कि साइरस पियर्सन जो है ना, डोरिस का मेल वर्जन है, बिल्कुल अपनी बहन जैसा है। मतलब जितनी जितनी बिगड़ी हुई इसकी बहन है डोरिस, मतलब मिसेस पियर्सन की बेटी है, उतना ही बिगड़ा हुआ ये भी है। मतलब डोरिस का मेल वर्जन कह लो आप, सारे के सारे गुण इसमें आए हैं अपनी बहन से। साइरल थोड़ा सा कैजुअल वे में बहुत ही तेज़ी से आके बोलता है, हेलो मम, टी रेडी। वो भी पूछता है चाय तैयार है। मिसेस पियर्सन कहती नहीं आते यार। अब वो गुस्सा हो जाता है, मूविंग टू द टेबल एनॉयड, वाई नॉट, क्यों नहीं है, गुस्सा हो गया ना वो। मिसेस पियर्सन बहुत ही कामली बोलती है, आई कुडंट बॉदर, कहती क्योंकि मेरा मन नहीं किया इसलिए नहीं बनाई चाय मैंने। अब यहाँ पर साइरल कहता है, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, तबीयत ख़राब है क्या आपकी, ये कोई प्रॉब्लम है। कहते नो, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, कहते नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना अच्छा कभी फील नहीं किया, तो इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई। अब यहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, तो गुस्सा आ जाता है, कहता है व्हाट्स द आइडिया देन, मतलब फिर ये सब क्या हो रहा है। तो कहती है जस्ट अ चेंज, थोड़ा सा बस बदलाव है। अब वो फिर से उसको गुस्सा आ जाता है। अब वो थोड़ा सा तेज़ और हुक्म चलाने वाले ब्रिस्कली वे में बोलता है, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकलिंग, हैवन टू मच टाइम। अब कहता है कि अच्छा ये सब बंद कीजिए और माँ काम पर लग जाइए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब इतने में साइरिल ये कहकर जाने वाला होता है, मतलब अपना ऑर्डर दे के अपनी मम्मी को जाने वाला होता है, तभी मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम, तभी मतलब वो जाने वाला होता, तभी मिसेस पियर्सन की आवाज़ उसे रोक देती है। कहती आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत टाइम है। तो वो कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी जल्दी काम पे लगो और मेरे लिए चाय बनाओ। तो कहते हैं मेरे पास तो बहुत टाइम है, आज मेरी बहुत सी मैं आज बहुत आराम करने के मूड में हूँ। सो
वो कहता है कि येस बट आई हैवेंट। कहते हैं हाँ आपके पास समय होगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, गॉट अ बिजी टू नाइट टू नाइट। आज भी मेरी जो शाम है बहुत ही बिजी होने वाली है। और वो भी लेफ्ट की तरफ डोर की तरफ चले जाता है, मतलब वो मूव करता है। तब वो कहता है डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरे कपड़े बाहर निकाले थे। मिसेस पियर्सन तो वही नहीं निकाले, बहुत आराम से कहती है अरे याद नहीं रहा मुझे, बट आई डाउट इट। कहते नहीं नहीं मुझे याद नहीं रहा, शायद नहीं निकाले मैंने। अब मिस साइरल कहता है मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग। अब वो टेबल की ओर बढ़ता है थोड़ा प्रोटेस्ट में कहता है नाउ लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग। तो वो कहता है कि आप देखो आज सुबह ही आपने मुझसे कहा था, इवन प्रॉमिस किया था कि आप मेरे कपड़े चेक करोगे और कहीं कुछ मेंडिंग यानी कुछ सिलाई, कुछ रिपेयरिंग की, सिलाई विलाई की ज़रूरत होगी तो आप वो भी करके दोगे, पर आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो कहती है येस वेल आई नो आई हैव डिसाइडेड बट आई डोंट लाइक मेंडिंग। कहती हाँ हाँ बिल्कुल याद है मुझे, मैं मतलब बढ़िया बात है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि कुछ मेंडिंग की ज़रूरत होगी तो मैं कर दूँगी, लेकिन मुझे मेंडिंग करना पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद सिलाई करना, इसलिए मैंने नहीं किया, मेरा मन नहीं था। तो सिरिल थोड़ा सा गुस्सा हो जाता, कहता है दैट्स अ नाइस वे टू टॉक। कहता है वाह क्या बढ़िया बात है। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट। अगर हम सभी ऐसा बोलना शुरू कर देंगे तो घर कैसे चलेगा। तो घर चलाने की बात आ रही है। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिसेस पियर्सन कहती है यू ऑल डू टॉक लाइक दैट इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, you don't do it. If it's something at your work you get the union to bar it, but now all that's happened is that I have joined that movement. अब वो कहते हैं कि वो जब कहते हैं ना कि अगर सब ऐसे ही सोचेंगे तो ये घर में काम कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। तो मिसेस पियर्सन बोल देती कि तुम सब तो वैसे ही करते हो, वैसे ही बात करते हो, घर का कोई काम करना तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम नहीं करते, अगर तुम्हें कोई काम करना पसंद नहीं तो तुम नहीं करते हो। तुमको तुम्हारे ऑफिस में भी अगर कोई काम पसंद नहीं है तो तुम यूनियन को बोल देते हो और स्ट्राइक कर देते हो। अब इतना ही हुआ है कि मैंने भी ये मूवमेंट ज्वाइन कर ली है। जैसे तुम अपने ऑफिस में जब काम करते हो, जब तुम घर में कोई काम तुम्हें पसंद नहीं आता तुम उस काम को नहीं करते, इवन ऑफिस में भी जब तुम्हें कोई काम पसंद नहीं आता तो तुम यूनियन को बोल देते हो और स्ट्राइक कर लेते हो। ऐसे से मैंने भी किया है, मुझे ये मेंडिंग करना पसंद नहीं है तो मैंने भी ये मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, मैं भी काम नहीं कर रही। अब साइरल इस बात को सुन के एकदम हक्का बक्का स्टैगर्ड हो जाता है। कहते आई डोंट गेट दिस मम व्हाट्स गोइंग ऑन। कहते मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मम, ये सब हो क्या रहा है। मिसेस पियर्सन कहती हैं चेंजेस, ये काफ़ी लेकोनिक और सेंसिटिव वे में कहती है, मतलब धीमे से और ख़तरनाक सन्नाटे में कहती हैं चेंजेस, बदलाव हो रहे हैं। सो अब जो साइरल है वो भी थोड़ा सा हक्का बक्का, थोड़ा कि बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है कि उसकी मदर को अचानक से हो क्या गया। अब इतने में इसकी बहन आ जाती है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वेयरिंग अ रैप, शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। अब इतने में ही डोरिस आती है और वो अपना रेडी हो रही है, ड्रेसअप हो रही है, और वो उसने एक रैप पहन लिया है और उसका फेस बहुत ही पेल लग रहा है और रोने की वजह से उसकी आंखें भी लाल हो गई हैं। अब मिसेस पियर्सन कहती है यू लुक टेरिबल, आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। वो कहती कि अरे तुम्हारा तो बड़ा बुरा हाल लग रहा है, मैं तो चार्ली स्पेंस के लिए भी मतलब चार्ली स्पेंस के लिए भी मैं ये चेहरा तो नहीं रखती, इस तरह से तो रेडी नहीं होती, तुम तो बहुत टेरिबल लग रही हो। डोरिस मूविंग अबाउट अ टेबल एंग्रीली। अब वो टेबल की ओर जाते हुए गुस्से में बोलती है ओह शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस इन इन एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। अब उसे गुस्सा आ जाता है और कहती है कि बस करिए, चार्ली स्पेंस का नाम मत लीजिए, और वैसे भी अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, बस अभी मैं ड्रेसअप हो रही हूँ, मैं अपने कपड़े बदल रही हूँ, और अगर मैं बुरी लग भी रही हूँ तो आपकी वजह से, आपने मुझे रुलाया है। अब साइरल जो बीच में बोलता है क्यूरियस होके, वो जानना चाहता है कि भाई माँ ने ऐसा क्या किया कि डोरिस रो पड़ी। वाई व्हाट डिड शी डू, वो पूछता है अपनी बहन से कि भाई क्या हुआ, माँ ने ऐसा क्या किया है जो तुम रो गई। नेवर योर माइंड, कहते तुम्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से। अब जैसे भाई बहन आपस में लड़ते हैं वैसे ही लड़ रही हैं दोनों भी, कहते तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर। अब वो कहती है कि घर में कोई स्टाउट बचा है क्या, याद नहीं आ रहा। स्टाउट ये ड्रिंक है। वो कहते साइडल कहता है कि बॉटल और टू, एक दो बोतल होंगी आई थिंक, बट
यू डोंट वॉन्ट स्टाउट नाउ, अभी आपको स्टाउट की क्या ज़रूरत है? मिसेस पियर्सन धीरे धीरे लेफ्ट की ओर बढ़ती कहती है, ज़रूरत है, आई डू। वट फॉर, किस लिए ज़रूरत है वो पूछ रहा है उसका बेटा। अब वो दरवाजे की तरफ मुड़ के बोलती है, पीने के लिए, यू क्लॉट। क्लॉट का मतलब है बेवकूफ़। कहते पीने के लिए, और किस लिए बेवकूफ़। अब इतने में मिसेस पियर्सन राइट से बाहर हो जाती है। सैरिल और डोरिस जो हैं वो हडल हैं, मतलब एक दूसरे के पास झुके हुए हैं, मतलब हडल है, मतलब हडल क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के पास झुक कर फुसफुसाते हुए बातचीत करते हैं लेफ्ट सेंटर में, और धीरे धीरे विस्परिंग करते हैं। डॉरिस कहता है, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, कि वो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसी बात कर रही थी? तो येस, नो टी रेडी, कुडंट केयरलेस। कहते हाँ, चाय तैयार नहीं थी और उन्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। वेल, आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस। तो डॉरिस कहते चलो ठीक है, अच्छा कम से कम हम दोनों के साथ हुआ। आई थॉट आई वुड डन समथिंग रॉन्ग। तो कहते, वो कहती है कि मुझे लगा था शायद मेरी ही कुछ गलती होगी, इसलिए मम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया, बल्कि हम दोनों के साथ किया। सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स। कहते हाँ, मुझे भी ये लगा कि शायद मेरी कोई गलती है, बट दिक्कत तो उन्हीं में ही है, उनके साथ कुछ गलत है, तभी वो ऐसे बिहेव कर रही हैं। तो शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन एंड आई कुडंट बिलीव माई आइज। तो डॉरिस कहती कि जब मैं आई थी ना, तो वो ताश खेल रही थी, सिगरेट पी रही थी, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है, मैंने क्या देख लिया। तो भाई कहता है इसका, आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉज नॉट। कहता हाँ, मैंने भी पूछा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, पर उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक है। कहते वेल, शी हैज सडनली ऑल डिफरेंट एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई एंड इट वाजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड। कहते हाँ, वो तो अचानक से पूरी की पूरी बदल गई है, इसी चीज़ ने मुझे रुलाया। बातों से ज़्यादा उनका बोलने का अंदाज़, मतलब बातें तो उन्होंने बोली है मुझे बहुत बुरी, लेकिन उनका बोलने का अंदाज़, उनका चेहरा, वो सब मुझे बहुत ही टेरिबल लगा, मुझे तो बहुत डरावना लगा, और इस वजह से मैं रोने लग गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब सिरिल कहता है कि हैवेंट नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी। कहते नहीं, मुझे तो ऐसा उनको देखने से कुछ नहीं लगा, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल वैसे ही दिख रही हैं। शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, वाई एंड गॉट, व्हाट इज़ इट। कहते नहीं, मुझे तो नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि कहीं उनका सिर तो नहीं टकरा गया? मतलब वो क्या कहते हैं, हाँ हाँ वही वही वही। अब सैरल चकित हो जाता है एकदम, कहते हैं डू यू मीन शी इज़ वन वन, मतलब मदर जो है वो पागल हो गई है? कहते ओ नो यू फैट हैड, यू नो कंक्यूजन शी माइट हैव। कहते नहीं, मेरा मतलब है कि उन्हें कंकशन हो गया है, कंक्शन हो गया उन्हें। साउंड्स फार फेस्ट। कहते हैं अरे, ये तो ज़्यादा लग रहा है। कहते वेल, शी इज़ फार फेस्ट इफ़ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिंस टू गिगल। कहते हैं अच्छा, तो वो खुद ज़रा कम अजीब लग रही हैं क्या, अचानक से खिलखिलाने लगती, गीगल करने लगती हैं। नाउ देन व्हाट इज़ इट। कहते अब क्या हुआ। कहते इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन। कहते अगर वो डैड के आने पर भी ऐसे ही रहती है ना, अगर डैड आ गए, उनके फादर अगर आ गए और उसके बाद वो ऐसे रहती हैं, तो फिर अब हंस पड़ेंगी, मतलब फिर से हंसने लगती है। मतलब यहाँ पे ना डोरिस हंस रही है अपनी मदर को, मदर की सिचुएशन सोच के कि वो ऐसे क्यों कर रही है, हंसने लगती है और कहती है अगर डैड भी अगर ऐसे आ गए और इन्होंने फिर से यही बिहेवियर रखा तो, और वो फिर से हंस पड़ती है। अब यहाँ पर सेरिल भी हंसता है, वो कहता है कि आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, टू फ्रंट रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस। कहते हैं मैं तो घर पे ही रहूँगा, ये तमाशा फर्स्ट रो से देखने वाला है। अब मिसेस पियर्सन जो है राइट से ही बाहर गई थी, तो वहीं से अंदर आ जाती हैं, कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड हाफ फिल्ड ग्लास। उनके हाथ में वो स्टाउट की बोतल होती है और आधा भरा हुआ ग्लास होता है। साइरल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफिंग एंड गिगलिंग। अब साइरल और डोरिस अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुक नहीं पाते, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, मतलब अपनी हंसी पकड़ नहीं पाते। मिसेस पियर्सन रिगार्ड देम विद कंटेप्ट। अब मिसेस पियर्सन जो उन्हें थोड़ा घूरती हैं। मिसेस पियर्सन थोड़े ठंडे वे में, बहुत ही कोल्डली वे में, ताने वाले टोन में टोंट करके बोलती है, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। शी मूव्स टू द सेटी एंड सेट। सेटी ये वो होती है बैठने का एक सोफ़ा टाइप होता है, सोफ़ा ज़्यादा कंफर्टेबल और बड़ा होता है, सेटी थोड़ा सा छोटा होता है।
अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन अपने बच्चों को ताना मार के बोलते, तुम दोनों हमेशा बड़े होने की बात करते हो, कभी अपनी उम्र का भी बर्ताव कर लिया करो। और वो बैठ जाती हैं आके सेटी पर। कांट वी लाफ नाउ। अब बेटा बोलता है उसका, क्या हम हंस भी नहीं सकते? येस इफ इट्स फनी गो ऑन, देन टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट। कहते ठीक है, हाँ अगर मजाक हो तो हंसो ना, चलो बताओ बताओ क्या जोक है, मैं भी हंस दूंगी थोड़ा सा, मुझे भी बहुत ज़रूरत है हंसने की। यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम। कहता कि आप हमारे जोक्स कभी नहीं समझ पाओगे। आई एम यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस। अब वो फिर से उसका मजाक उड़ाती कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही ना मैं तुम्हारे जोक सुन सुन कर ऊब चुकी हूँ, यौन करती हूँ, मतलब मुझे बोरिंग लगते तुम्हारे जोक्स। अब ये डोरिस जो है ये फिर से रोने की तैयारी में होती है बात सुन के कि माँ तो इसको बिल्कुल झाड़े जा रही है, इसको बार बार ताने मारे जा रहे हैं, ऐसे उसको रिप्लाईज दे रही है कि इसके पास ना कुछ है नहीं बोलने को। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव इट डन। अब वो बोलती उसको, कंप्लेंट करती अपनी मदर को कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो, हमने आखिर किया क्या है। तो प्रॉम्प्टली एकदम तुरंत रिप्लाई देती वो, नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक, व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो। अब वो कहती कि हाँ तुम कुछ करते ही तो नहीं हो, बस आते हो, कोई चीज़ मांगते हो, फिर चले जाते हो, जब कोई जगह चीज़ मतलब कोई चीज़ उस जगह पे नहीं मिलती तो वापस मुझ पर टूट पड़ते हो, वैसे तुम कुछ करते ही कहाँ हो। अब यहाँ पर साइरल जो है थोड़ा चिढ़ जाता है, एग्रेसिव बोलता है, लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। कहते अगर आप चाय नहीं बनाएंगी तो मैं खुद खुद कुछ ढूंढ कर खा लूँगा, मतलब मैं तो खुद ही कुछ ना कुछ ढूंढ के खा लेता हूँ। तो मैं समझ, वाई नॉट हेल्प योर सेल्फ, शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट। कहते हाँ क्यों नहीं, खुद को कुछ ढूंढ के मतलब खुद से ढूंढ के कुछ खा लो, अच्छी बात है। अब साइरल बोलता है, टर्निंग ऑन हिज वे टू किचन, माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। अब वो चिढ़ जाता है, कहता है कि फिर भी ये ठीक नहीं है, मैं पूरे दिन काम करके और आपने मेरे लिए चाय तक नहीं बनाई है। डोरिस भी कहती है हाँ मेरे लिए भी नहीं। तो मिसेस पियर्सन कहते पूरा दिन, कामली बोलती 8 hours a day, कि 8 घंटे का काम है बस तुम्हारा, मेरा तो पूरे दिन का काम है, तुम्हारा तो सिर्फ 8 घंटे काम है, तुम इसमें थक गए। तो यहाँ पर ये देखो ये पी रही है ना अपनी ड्रिंक पी रही है ये डोरिस और साइरल खड़े हैं। वो अब साइरल बोलता है येस 8 hours a day एंड डोंट फॉरगेट इट। कहते हैं हाँ 8 घंटे पूरे कर लिए मैंने, भूलिएगा मत। कहते आई हैव डन माई 8 hours। कहती हाँ हाँ मैं, मतलब वो कहता है कि 8 घंटे का काम है ना, तो वो कहती कि हाँ हाँ मैंने भी अपने 8 घंटे पूरे कर लिया, मैं भी आराम करूँगी। तो साहिल कहता है दैट्स डिफरेंट, ये अलग चीज़ है। तो डोरिस भी उसका साथ देती है कि हाँ हाँ आपके 8 घंटे घर में थे, हमारे 8 घंटे बाहर थे। अब मिसेस पियर्सन दोनों को फिर से एक जवाब देने वाली है, इट वॉज नाउ इट इज़ इट इज़ नॉट 40 hour week for all now, just watch it at the weekend when I have my 2 days off। कहते कि ठीक है था, अब नहीं है, अब सबके लिए 40 घंटे का हफ्ता है, वीकेंड पर देखना मेरी 2 दिन की छुट्टी होगी। मतलब यहाँ पे मिसेस पियर्सन वीकेंड पर छुट्टी लेने की बात कर रही हैं। अब डॉरिस और साइरल एक दूसरे को घबरा के देते, एक्सचेंज अलार्म ग्लेंसेस, देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली। वो दोनों एक दूसरे को घबरा कर देखते हैं, फिर वो अपनी मदर को देखते हैं जो कि आराम से बैठी होती है। साहिल कहता है मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। साहिल एग्जिस्ट टू द किचन। अब वो कहता है कि मैं कुछ खा लेता हूँ, लगता है ताकत की ज़रूरत होगी, तो खाना बहुत ज़रूरी होगा, और किचन की तरफ चला जाता है। डोरिस थोड़ी सी चिंता में है, सेटी पर बैठ जाती है एंक्शियसली। कहते मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। तो कहते कि आप सच में सैटरडे संडे कोई काम नहीं करेंगी। अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन फिर से बहुत काम है, एयरली बहुत ही हल्के अंदाज में कहती हैं, नो आई वुडेंट गो दैट फार। कहते नहीं इतना भी नहीं कह रही, आई माइट मेक अ बेड और टू और एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। कहते नहीं बिस्तर शायद ठीक कर दूंगी मैं, थोड़ा सा खाना भी बना दूंगी मैं, एहसान के तौर पर फेवर कर दूंगी तुम पर, खाना बना दूंगी, विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ। कहते ठीक है ऐसे सारा मैं आराम नहीं करूँगी, बेड बना दूँगी, मतलब बिस्तर ठीक कर दूँगी,
थोड़ा सा खाना भी बना दूंगी एहसान के तौर पर, लेकिन सबको मुझे अच्छे से पहले कहना होगा। काम करने के लिए नाइसली मुझे कहना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा। ऐसे काम नहीं करूँगी मैं, मुझे रिक्वेस्ट करना होगा और हर एक चीज़ के लिए थैंक यू कहना पड़ेगा। और मुझे पैम्पर भी करना पड़ेगा, मतलब मैं काम तो करूँगी वीकेंड पर, लेकिन एहसान के तौर पर। और उसके लिए भी आप लोगों को मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा, पैम्पर करना पड़ेगा। But any of you 40 are a weekers who expect to be waited on hand or foot on Saturdays on Sundays with no thanks for it are in for a nasty disappointment might go off for the weekend perhaps. वो कहते हैं कि मुझे पैम्पर करना पड़ेगा, मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे रिक्वेस्ट करोगे थैंक यू बोलोगे तभी करूँगी, वरना कोई भी 24 घंटा काम करने वाली मम्मी की उम्मीद वीकेंड पे ना करना। अगर तुमने मुझे रिक्वेस्ट नहीं किया किसी काम के लिए, थैंक यू नहीं बोला, पैम्पर नहीं किया, मतलब मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो मैं एक भी काम नहीं करूँगी। और शायद मैं वीकेंड पे कहीं घूमने भी चली जाऊँ तुम लोगों को यहीं छोड़ के। अब डॉरिस थोड़ी सी हक्की बक्की हो जाती है, कहती गो फॉर द वीकेंड, वीकेंड पे घूमने जाओगे आप? वाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, stuck here day after day, week after after, if I don't need a change who does? कहते क्यों नहीं, मुझे भी थोड़ी हवा बदलने की ज़रूरत है। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो कौन जाएगा वीकेंड पे घूमने? बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विथ? कहते पर आप जाओगे कहाँ और किसके साथ जाओगे? दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा मामला है, मैं देख लूँगी। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु शुड यू गो विद, डू यू? कहते हैं मेरा बिजनेस, मतलब दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, डोंट आस्क मी। क्या मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम कहाँ जाओगे, किसके साथ जाओगे, तो क्यों पूछ रहे हो? तो दैट्स डिफरेंट। वो कहती है अलग बात है। कहते अरे द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग। कहते बस इतना ही अलग है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तुमसे ज़्यादा बेहतर जानती हूँ खुद को संभालना, तो मुझे तो बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो पूछने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे कि मैं कहाँ जाऊँगी और किसके साथ जाऊँगी। डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग? अब यहाँ पे डॉरिस बहुत हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि आपको कुछ लग गया है क्या, आप कहीं गिर विर गई हो क्या, कुछ सर पे चोट लग गई है क्या जो इस तरह से बिहेव कर रही हो? अब यहाँ पर ये फिर से थोड़ा सा कड़ा होकर बोलती है, एकदम कोल्डली बोलती है, नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। कहते नहीं मुझे तो नहीं लगी, लेकिन सिली गर्ल तुम अगर इस तरह की सिली क्वेश्चंस पूछे तुमने बंद नहीं किए ना, तो मैं तुम्हारे ही कुछ मार दूंगी, तुम्हारे सर पे कुछ मार दूंगी। अब इतनी बात सुन के कि उसकी मदर कह रही है कि मेरा तो सर पे कुछ नहीं लगा, लेकिन अगर तुमने ये फालतू के सिली क्वेश्चंस पूछने बंद नहीं किए ना, तो मैं तुम्हारे सर पे कुछ मार दूंगी। ये बात सुनकर डॉरिस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शी स्टेयर्ड एट हर ओपन माउथ एंड रेडी टू क्राई। अपनी माँ को मुंह खुला करके चौंक के सरप्राइज होके देखती रहती है और रोने लगती है। डॉरिस ओह दिस इज ऑफुल, शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली। अब वो कहती है अरे ये तो बहुत बुरा, वो धीरे धीरे रोने लग जाती है। मिसेस पियर्सन शांत लेकिन सख्त में बोलती है, डोंट ब्लबरिंग, रोना बंद करो, यू आर नॉट अ बेबी, बच्ची नहीं हो तुम। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्लीज पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, ना स्टॉप इट। वो कहती है तुम बच्ची नहीं हो, अगर तुम चार्लीज पेंस के साथ घूमने लायक बड़ी हो गई हो ना, तो अच्छे से प्रॉपरली बिहेव करो, तुम इतनी भी बड़ी हो गई हो, और रोना बंद करो ये नाटक। जब से रोई जा रही, जब से आई रोई चली जा रही हूँ। अब आ जाते हैं मिसेस पियर्सन के हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन। George Pearson enters left. He is about 50, fundamentally decent but solemn, self-important, pompous. Preferably, he should be a heavy, slow-moving type. He notices Doris tears. अब जॉर्ज पियर्सन आ गए। वो बहुत ही गंभीर और सॉलिड टाइप पर्सन है। डॉरिस को रोते हुए देखते हैं और परेशान हो जाते, कहते हैं हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। कहते हैं अरे हेलो क्या हो गया, क्यों रो रही हो, बेटी से पूछते हैं। थ्रू सोप्स, अभी सुबक सुबक कर आंसू बोलती है, यू विल सी, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों रो रही हूँ। अब वो डॉरिस जो है वो भाग जाती है। डॉरिस रन्स लेफ्ट विद अ सॉप और टू ऑन द वे। अब वो रोते बाहर निकल जाती है। डॉरिस स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन। अब ये देखकर जॉर्ज को समझ नहीं आता, वो देखता रहता है एक मोमेंट के लिए इसको कि ये क्या हो गया। बस यू विल सी बोल के भाग गई, रोती रोती चली गई। फिर वो मिसेस पियर्सन को देखते हैं, कहते हैं डिड शी से यू विल सी, मतलब कहते हैं कि उसने क्या कहा कि आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा। मिसेस पियर्सन बोलती है येस, हाँ पता चल जाएगा। और पूछते हैं भाई क्या मतलब था इस बात का, तो बोलती है बेटर आस्क हर,
उसी से पूछो ना क्या मतलब था इसका। चलिए आगे पढ़। जॉर्ज लुक्स स्लोली again at the door, then at Mrs. Pearson. Then he notices the stout that Mrs. Pearson raises for another sip. His eyes almost bulge. अब यहाँ पे जॉर्ज दरवाजे की तरफ देखता है दोबारा से और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र मिसेस पियर्सन के हाथ में लिए स्टाउट के ग्लास पर पड़ती है। वो सिप लेने वाली होती है। तभी जॉर्ज की आंखें लगभग बाहर आ जाती है। कहते स्टाउट, मतलब तुम स्टाउट पी रही हो? कहते यस। वो थोड़ी हैरान हो जाता है, अमेज्ड होते हैं। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? तुम स्टाउट क्यों पी रही हो? बिकॉज आई फैंसीड सम, मेरा मन था। एट दिस टाइम ऑफ डे, इस समय पी रही हो? येस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे? कहते हाँ, क्या मतलब है इस वक्त, ये क्या गलत वक्त है स्टाउट पीने का? अब वो थोड़ा सा उलझन में आ जाता है। कहता है नथिंग आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। कहते नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, पर तुम्हें कभी ऐसा करते देखा नहीं मैंने। तो कहते वेल यू आर सीइंग मी नाउ, ठीक है अब देख लो भाई, क्या दिक्कत है। विथ हैवी डिस्टेस्ट, मतलब एकदम चेहरा बिगाड़ते हुए, एकदम गंदे से एक्सप्रेशन देते हुए कहते येस एंड आई डोंट लाइक इट, इट डजंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज एट यू। कहते हैं हाँ लेकिन मुझे सब पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, और मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ तुम पर, क्या कर रही हो तुम? वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू। कहते ठीक है चलो, तुम्हें भी कभी तो मेरी वजह से हैरानी हुई, ये अच्छा बदलाव है तुम्हारे लिए। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? इट मस्ट बी समटाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज। कहते मतलब ये कि अब तक तुम्हें मुझे देखकर हैरान हुए बहुत समय हो गया है। हमेशा मैं ही तुम्हें देखकर हैरान होती, मैंने कुछ ऐसा कभी किया नहीं कि तुम मुझे देखकर हैरान हो जाओ, आज हो जाओ। आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, आई एम ऑल फॉर अ स्टेडी गोइंग ऑन, यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम। बाय दैट वे I forgot to tell you this morning I wouldn't want any tea, special snooker match night at the club tonight and a bit of papa going to no tea. वो कहता है कि नहीं यार, मुझे तो सरप्राइज़ वैसे भी पसंद नहीं है, मुझे अब सब कुछ सीधा सादा सा एक जैसा पसंद है, और ये तुमको अब तक पता होना चाहिए। फिर वो बताते हैं आगे कि मैं तुम्हें एक बात बतानी भूल गया था, आज क्लब में स्पेशल स्नूकर मैच है और वहाँ थोड़ा खाना भी होगा, सो मुझे चाय नहीं चाहिए। कहती ठीक है दैट्स ऑल राइट, देयर इज़ नॉट एनी। कहते हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी चाय नहीं बनी। अब ये बात सुन के थोड़ा एस्टॉनिश होता, हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि उसने तो बोला था ना चाय बना के रखना, मैं आने वाला हूँ। तो सबने ये तो अंडरस्टूड है कि शाम को सबके लिए चाय और कुछ खाने का बनेगा। तो कहते हैं यू मीन यू डिडेंट गेट एनी रेडी, कि तुमने चाय नहीं बनाई, तुमने कुछ रेडी नहीं करके रखा? येस एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न्ड आउट। कहते हाँ और अच्छा ही होना जो नहीं बनाई। अब यहाँ पर इसको थोड़ी सी एग्रीड हो जाता है, ठेस लग जाती है। ठेस लगी आवाज़ में कहता है दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वुड वॉन्टेड सम। कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अगर मुझे चाय चाहिए होती तो तुमने तो नहीं बनाई ना। माई गुडनेस लिसन टू द मैन, annoyed because I don't get a tea for him and that he doesn't even want. Ever tried that at the club? कहते हे भगवान, इस आदमी को तो सुनो, चाय चाहिए ही नहीं और नाराज़ इसलिए कि मैंने चाय नहीं बनाई। क्लब में भी ऐसा ट्राई किया है इसने? मतलब क्या तुमने क्लब में भी कभी ऐसा ट्राई किया है? मतलब तुम मुझसे इस बात के लिए गुस्सा हो रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई, और चाय तुमको चाहिए भी नहीं थी? क्या मतलब, क्या फालतू की बात है। ट्राइड वॉट एट द क्लब? कहते क्या ट्राई किया? बोलते क्या तुमने कभी क्लब में ट्राई किया है? कहते क्या ट्राई किया है मैंने क्लब में? कहते गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर एंड यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट एंड ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट। कहते तुमने कभी ऐसे बाल जाके किया है कि मुझे बियर नहीं चाहिए लेकिन मैं नाराज़ हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए पहले से बियर रेडी नहीं रखी? जाकर ट्राई करके देखो क्या जवाब मिलेगा तुम्हें बार में। कहते आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। कहते मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। तो कहते वो लोग तुम पर हंसा करते हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते, वो इतना तुम पर हंसेंगे। अब यहाँ पे जॉर्ज को आ जाता है गुस्सा। इंडिग्नेटली कहते हैं लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी। मुझ पर नहीं हंसते वो लोग। ऑफकोर्स दे डू, यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, anybody else would have done. You are one of their standing jokes famous. They call you Pompey Pearson because they think you are so slow and pompous. वो कहती है कि बिल्कुल वो तुम्हारा मजाक उड़ाते। किसने कहा वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते? तुम तो बल्कि एक परमानेंट जोक हो। सब तुम्हें पोम्पी पियर्सन बोलते हैं क्योंकि तुम उन्हें बहुत ढीले, सुस्त और भारी लगते हो, इसलिए तुम्हें वो पोम्पी पियर्सन कहते हैं।
कहते नो नेवर, हक 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 क्या बोलते हक बकाया हुआ बोलता है ये, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। कहते इट्स ऑलवेज बीटन मी, वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स, लीविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हर हु डजंट मेक यू लुक फूल। कहते हमेशा तुमने कभी ये सोचा नहीं ना, हमेशा ये सोचा नहीं तुम उस जगह इतना वक्त क्यों बताते हो जहाँ लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते हो, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, और ये सब करते वक्त तुम अपनी बीवी को घर पर छोड़ देते हो हर रात, उसके साथ टाइम बिताने की बजाय जिसके साथ तुम उसे जिस इंसान को तुम कभी बेवकूफ़ नहीं लगते, क्योंकि तुम्हारी वाइफ तो तुम्हें कभी बेवकूफ़ नहीं समझती, तुम उसके साथ टाइम नहीं बिताते, बल्कि तुम क्लब में जाके ऐसे लोगों के साथ हर रात टाइम बिताते हो जो जिन्हें तुम बेवकूफ़ दिखते हो। अब साहिल जो है आता है बीच में, एंटर्स राइट विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड थिक स्लाइस ऑफ केक इन अदर, जॉय ऑलमोस्ट डेज टर्न्स टू हिम अपीलिंगली। अब जॉर्ज जो है परेशान होकर साहिल की तरफ मुड़ता है, साहिल अपने एक हाथ में दूध का ग्लास और एक हाथ में एक थिक स्लाइस लेकर आता है केक का। जॉर्ज कहता है, Here, Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey person, do they? Cyril Best hesitates angrily. Go on, tell me, do they? अब वो साइरल से पूछता है कि तुम मेरे साथ गए हो ना एक दो बार क्लब, तो तुम मुझे बताओ, क्या वो लोग मुझे पॉम्पी पियर्सन बोलते हैं? क्या वो लोग मुझ पर हंसते हैं मुझ पर? वो पूछता है। अब यहाँ पे साइरल थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है, कहते बताओ ना, तुम तो मेरे साथ गए हो ना, क्या क्या वो मुझे सच में ये पॉम्पी पियर्सन बोलते हैं, हंसते हैं मुझ पर? अब साइरल थोड़ी सी लड़खड़ाती है, एम्बैरस में बोलता है, वेल येस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू। कहते हाँ डैड, मुझे मुझे भी बुरा लगता है, मुझे डर है, पर वो बोलते हैं। अब यहाँ पर जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अनदर स्टैगर्ड। अब ये सब देखकर जॉर्ज दोनों को देखकर उसको एकदम बहुत बुरा सा लगता है, स्टैगर्ड हो जाता है वो। सो जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अनदर, वो चला जाता है। सो जॉर्ज कहता है, वेल आई विल बी डैम। उसको बहुत बुरा लग रहा है, फिर जॉर्ज चला जाता है धीरे धीरे, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड। उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सर पे मार दिया। साइरल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंग्रेडली टू मिसेस पियर्सन। अब वो अपने फादर को ऐसे जाते हुए देखता है, अपनी मदर्स को बोलता है, नाउ यू शुडेंट हैव टोल्ड मी दैट मम, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स माइंड टू। कहते मम आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया और मेरी भी। मिसेस पियर्सन कहती है, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, द ट्रूथ ऑट नॉट to hurt anybody for long. If your father didn't go to club so often, perhaps they would stop laughing at him. वो कहती कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था, पर कभी कभी फीलिंग्स हर्ट होने की भी ज़रूरत होती है। सच से कब तक भागोगे? बिल्कुल सच है ये। अगर तुम्हारे फादर क्लब जाना कम कर देंगे तो शायद लोग उन पर हंसना भी कम कर देंगे। अब साहिल थोड़ा सा ग्लूमी वे में कहता है, आई डाउट इट, मुझे तो शक है ऐसा होगा। तो मिसेस पियर्सन थोड़ी सख्त वे में कहती है, सेवर कहती है, पॉसिबली यू डू, बट what I doubt is whether your opinion is worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shoes. कहते हैं कि मुझे शक तुम्हारी सोच पर है। वो कहते हैं ना कि मुझे शक है आपकी इस बात पर कि ये अगर वो जाना कम कर देंगे तो लोग हंसना भी कम कर देंगे। तो कहती है मुझे शक तुम्हारी सोच पर है, तुम जानती ही क्या हो, दिन भर पैसे बर्बाद करते हो, ग्रे हाउंड रेस, डर्ट ट्रैक्स, आई शोज, और बोलते हो इन्जॉय कर रहा हूँ। तुम पैसे वेस्ट करने को इन्जॉय के नाम पर तुम पैसे वेस्ट करते हो। अब यहाँ पर ये भी थोड़ा सल्की बोलता है, वेल व्हाट इफ़ आई डू, आई हैव गॉट टू इन्जॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई। कहते तो क्या हो गया, थोड़े मज़े कर लेता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? कहते मज़े कहाँ, तुम्हें मिल क्या रहा है इन सब से मज़े करने से? आई वुडेंट बी माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इन्जॉइंग योर सेल्फ। कहते कहाँ मज़े कर रहे हो, मैं नहीं बोलती, मुझे बुरा नहीं लगता अगर तुम सच में मज़े कर रहे होते, बट आर यू, क्या तुम सच में मज़े कर रहे हो? एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, तुम्हें मिल क्या रहा है इससे? देयर इज़ अ शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट। उस पर भी एकदम अटैक कर दिया है मिसेस पियर्सन ने। वो कहता है, माइट बी फॉर्म, मतलब कोई नॉक करता है, तभी ज़ोर से कोई नॉक करता है डोर पर, और वो देखता है, कहता है माइट बी फॉर मी, आई सी। कहता है शायद मेरे लिए कोई होगा, मैं देखता हूँ। और फिर साहिल जो है वो लेफ्ट से चला जाता है। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स, और तभी वो अचानक से, मतलब वो जाता है डोर पर, देखता है कौन है,
और अचानक फिर वो तब एक ही मोमेंट में वो री एंटर करता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और उसके पीछे दरवाज़ा है. इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिट्जराल्ड. यू डोंट वांट हर हेयर, यू डोंट हर हेयर डू यू. कहते हैं वो नेक्स्ट डोर वाली मिस फिट्जराल्ड आई है, आपको उनसे मिलना है. वैसे वो भी एक सिली ओल्ड बैग है. अब मिसेस फिट्जराल्ड की बुराई मिसेस फिट्जराल्ड के सामने कर रहा है ये. अब तो ये गया. बहुत ही तीखी आवाज में मिसेस पियर्सन बोलती है, सर्टेनली आई डू, आस्क हर इन एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग ईदर. शी इज़ अ वेरी नाइस वुमन विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव. तो बहुत तेज़ से बोलती है, बिल्कुल मुझे उनसे मिलना, उन्हें अंदर आने के लिए बोलो, और उन्हें सिली ओल्ड बैग तो बिल्कुल मत बोलो, वो तुमसे ज़्यादा अकल रखती हैं, तुमसे ज़्यादा चीज़ें जानती हैं वो. अब साइरल जो है वो चला जाता है. मिसेस पियर्सन फिनिश्ड हर स्टाउट एंड स्मैकिंग हर लिप्स. मिसेस पियर्सन जो है अपनी वो स्टाउट ख़त्म करती है और अपने स्मैक करती है अपने लिप्स को. और वापस से साइरल आ जाता है, अशरिंग इन मिसेस फिट्जराल्ड हु हेजिटेट्स इन अ डोरवे. अब वो देखता है कि भाई मिसेस फिट्जराल्ड जो हैं वो आई हैं और थोड़ी सी हेजिटेट हो रही है, क्योंकि वो एक्चुअल में तो मिसेस पियर्सन है ना. अब वो कहता है, कम इन मिसेस फिट्जराल्ड. कहते आइए आइए अंदर आइए. मिसेस फिट्जराल्ड मूविंग टू द लेसर सेंटर एक्सचेंज कहती है, आई जस्ट वॉन्डर इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. कहते कि मैं बस ये देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है ना. तो कहते नहीं, कुछ ठीक नहीं है यहाँ पर. कहते ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट. कहते सब ठीक है, तुम चुप रहो. वो डांट देती है उसको. अब ये साइरल जो है थोड़ा सा इंडिग्नेंट हो जाता है, थोड़ा सा वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों रहूँ. तो मिसेस पियर्सन चिल्ला कर बोलती है, बिकॉज आई टेल यू टू यू स्टिली स्पॉइल्ड यंग पेपीसन. कहती क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ चुप रहने के लिए, तुम बिगड़े हुए नखरेबाज छचोरे लड़के हो बिल्कुल. चुप रहो, तुम्हें कह रही हूँ चुप रहो, तो मतलब चुप रहो. अब मिसेस फिट्जराल्ड जो कि धीरे धीरे बेचैन हो रही है, कहती ओ नो श्योरली, कहते ऐसा मत कहो, अभी देखो ये तो है ही ना कमज़ोर लेडी. मिसेस पियर्सन बहुत ही सख्त वे में कहती है, नाउ मिसेस फिट्जराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़. कहती मुझे अपना घर का क्या करना है मैं जानती हूँ, मुझे मेरे अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करने हैं तो प्लीज़. कहते यस बट सिरिल. अब उसको अपने बेटे की चिंता हो रही है. सिरिल गुस्से में कहता है, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड. और वो भी उसको बोलता है कि वो भी मतलब चला जाता है, उसको भी गुस्सा वगैरह आ जाता है वहाँ पर. तो वो भी कहता है कि आप प्लीज़ चुप रहिए, ऐसे बोल के चला जाता है वो. अब मिसेस फिट्जराल्ड कहती मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग. अब वो धीरे धीरे ऐसे खुसफुसा के पूछती है कि अरे डियर क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है सब. तो मिसेस पियर्सन कहती है धीरे से, नथिंग मच जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस. कुछ नहीं, बस इन सबको इनकी औकात दिखा रही हूँ, इन सबको इनकी जगह दिखा रही हूँ, दैट्स ऑल. डूइंग वॉट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस. और तुम्हें तो ये सब बहुत साल पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि आज ये सब इतने बिगड़े नहीं होते अगर तुम इन्हें अपनी इनकी जगह दिखा देती तो. मिसेस फिट्जराल्ड इज जॉर्ज होम. वो कहती है मतलब वो अपने हस्बैंड के बारे में पूछती, क्या वो घर आ गया. एंड शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी. मिसेस कहती है, येस आई हैव बिन टेलिंग हिम दैट व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब. कहते हाँ हाँ आ गए वो घर, और मैंने उसे बता भी दिया कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. मिसेस विराट, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे. वो कहती है हाँ, क्लब में तो सब उसे पसंद करते हैं ना. मतलब मिसेस फिट्जराल्ड को एक्चुअली पता नहीं है. तो मिसेस पियर्सन कहती नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट. कहते नहीं नहीं कोई पसंद नहीं करता उसको क्लब में, और अब ये बात मिस्टर पियर्सन जॉर्ज को भी पता है. तो ये बात सुन के मिसेस फिट्जराल्ड जो कि एक्चुअली मिसेस पियर्सन है वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती, कहती है अरे डियर ये नहीं बताना था तुमको मिसेस फिट्जराल्ड, ये क्यों बताया तुमने. कहती नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट योर हैंड सून यू विल सी. कहते अरे बकवास मत करो, सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा. थोड़ी सच्चाई सुनने से इंसान सुधर जाता है, और देखना थोड़ी देर में ये तीनों तुम्हारी मुट्ठी में होंगे. नो आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट माई हैंड. वो कहती है कि मुट्ठी में नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई मेरी मुट्ठी में. अब वो इम्पेशेंटली बोलती है बेचैनी से, वेल वट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट ऑल थ्री ऑफ देम मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन. वो कहते हैं कि अच्छा छोड़ो, तुम चाहो या ना चाहो लेकिन अब ये लोग तुम्हारी ही सुनेंगे, याद रखना मेरी बात सही निकलेगी, मार्क माई वर्ड्स. तो जॉर्ज धीरे से एंटर करता है. अब वो अनप्लीजेंटली सरप्राइज है व्हेन ही सीज द विजिटर. मतलब उसको बहुत ही दुखी हो रहा है, उदास है, थका हुआ है. अब मिसेस फिट्जराल्ड को देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है. फिर वो आर्म चेयर पर बैठ जाता है और बहुत ही हेवीली वहाँ उस पर बैठ जाता है. एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप. और फिर वो अपनी
पाइप जला लेता है, अपनी सिगरेट जला लेता है. देन ही लुक्स फॉर मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जराल्ड. और उसके बाद वो मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड को घबरा कर देखता है, जो कि उसको एंशियसली रिगार्ड कर रही थी ना, वो रिगार्डिंग हिम एंशियसली. जॉर्ज कहता है जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जराल्ड. तो वो 1 मिनट के लिए सोचता है कि अरे, मतलब वो देखता है, वो कहता है कि आप तो मिसेस फिट्जराल्ड है ना. तो अब मिसेस फिट्जराल्ड तो एक्चुअली मिसेस पियर्सन है, जो हमेशा घबराई रहती है. उनको नहीं पता था उन्हें क्या कहना है. कहते वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज. कहते हाँ हाँ शायद, हाँ मैं मिसेस फिट्जराल्ड ही हूँ. मतलब वो उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि आप तो मिसेस फिट्जराल्ड है ना. तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती है हाँ हाँ शायद मैं वही हूँ. जॉर्ज तो ये भी हक्का बक्का कहते हैं हाँ मैं जॉर्ज हूँ. नर्सली आई एम सॉरी. कहते अरे मैं तो बस, मतलब वो थोड़ा सॉरी फील कर रही होती है. अब मिसेस पियर्सन चिढ़ जाती है इस बात से. व्हाट डज इट मैटर, योर नेम इज़ जॉर्ज इजंट इट, हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग. कहते अब इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही तो है, तुम क्या समझते हो अपने आप को, एडिनबर्ग के राजा हो क्या तुम. अब जॉर्ज को इस बात पर गुस्सा आ जाता है. व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट, जस्ट टेल मी दैट, एंड इट्स नॉट it bad enough without her calling me George. No tea. Pompey Pearson and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. अब वो गुस्सा होके कहता है अरे इस बात का क्या लेना देना है, और तुम्हारी हालत पहले ही इतनी ख़राब है, हमारी हालत पहले इतनी ख़राब है, ऊपर से मुझे लोग जॉर्ज, ये मुझे जॉर्ज कह रही है, कोई चाय नहीं है, पॉम्पी पियर्सन हूँ मैं, और बेचारी डोरिस तो ऊपर रोई जाली जा रही है पूरे दिन से, क्या हो रहा है. मिसेस ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन. अब वो कहती कि अरे अरे मुझे पहले समझ जाना चाहिए था. अब जॉर्ज उसकी तरफ देखता है और चिढ़ जाता है. कहता है यू ऑट टू हैव नोन, वाई ऑट यू टू हैव नोन, नथिंग टू डू विथ यू मिसेस फिट्जराल्ड. लुक वी आर एट 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us. मतलब तुम्हें, आपको क्या समझना चाहिए था, क्यों, क्या लेना देना है आपको और हमारा, ये हमारे घर का मैटर है मिसेस फिट्जराल्ड. देखो हमारा घर अब उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, तो बेटर होगा कि आप जाओ, प्लीज़ जाओ. अब मिसेस पियर्सन, मतलब मिसेस फिट्जराल्ड कुछ बोल पाती है इससे पहले मिसेस पियर्सन बोलती है आई वॉन्ट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू or something, and don't just march in and sit down without a word. It's bad manners. वो बीच में बोल देती, कहती नहीं जॉर्ज पियर्सन मैं इसे बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी. जब कोई पड़ोस का कोई मुझसे मिलने आता है तो कम से कम उसे गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू तो बोल ही सकते हो, सीधा घूर घूर कर बैठ जाना ये बदतमीज़ी है, ये मैं अलाउ नहीं करूँगी. अब मिसेस फिर बोलते नो इट्स ऑल राइट. कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं ठीक है. मिसेस पियर्सन बोलती नो इट्स नॉट ऑल राइट, वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, और आई नो द रीज़न वाई ग्लेयरिंग एट जॉर्ज एवेल. कहते नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, इस घर में तमीज़ से बात करनी होगी, वरना मैं दिखा दूंगी कैसे होती है तमीज़. जॉर्ज को ताड़ते हुए यदि समझे, मतलब उसकी तरफ देख के बोलती है समझे, तुम्हें तमीज़ सीखनी पड़ेगी. तो वो भी एकदम दब कर बोलता है वेल वॉट, समझता हूँ पर अब चाहो क्या, ठीक है. अब मिसेस पियर्सन टोंट करती है उसको, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट, दे विल बी वेटिंग फॉर यू वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, गो ऑन देन डोंट डिसअपॉइंटेड देम. कहते हैं और मतलब वो कहती है कि उसको ताना दे के बोलती है क्लब नहीं जाना तुम्हें, आज तो स्पेशल रात होती है ना, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे ताकि तुम पर हंस सके, जाओ जाओ उन्हें डिसअपॉइंट मत करो. जॉर्ज बिटरली दिल पे चोट खाकर कहता है दैट्स राइट, हाँ हाँ ठीक है, मेक मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, गो ऑन डोंट माइंड मी 6s and 7s. Poor Doris has been crying her eyes out, getting the neighbors in and see the one, suddenly losing his temper, glared at Mrs. Pearson shouting, all right, let her hear it. What's the matter with you? Have you gone balmy or what? अब ये भी से लड़ रहा है. वो कहता है कि हाँ हाँ सबके सामने मुझे ही नीचे दिखाती हो तुम, घर उल्टा पुल्टा पड़ा है, डोरिस रो रही है, पड़ोसी को बुला के रखा है तमाशा दिखाने के लिए, और एकदम से गुस्सा आ जाता है. फिर कहता है कि अब बस बता दो तुम्हें हो क्या गया, दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा. मिसेस पियर्सन तेजी से उठकर बोलते जंपिंग अनसेवरली, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन आई विल स्लैप यू बिग योर बिग फैट सिली फेस. तो वो कहती है अगर तुमने मुझ पर दोबारा ऐसे चीखे ना जॉर्ज पियर्सन, तो मैं तुम्हारी इस बड़ी सी मोटी सी बेवकूफ़ सी शक्ल पर थप्पड़ मार दूंगी. अरे यार ये तो बहुत बेइज्जती कर रही है इसकी. मिसेस फिट्जराल्ड जो बिल्कुल रोने लग गई इस बात से, कहती ओ नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड. मिसेस पियर्सन सेट्स. कहती अरे नहीं 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 ऐसा मत करो मिसेस फिट्जराल्ड.
मतलब वो उसको उसके एक्चुअल नाम से बुला रही है। तो जॉर्ज कहता है स्टेरिंग एट bewildered, either I am off my charm and or two you are. How do you mean? No, no, please, Mrs. Fitzgerald, look at you. You are Mrs. Fitzgerald. Then why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? Tell her to stop. Then there would be some sense in it. Staring at Mrs. Pearson, I think you must be tiddly. वो कहता है हक्का पक्का कि अरे अब तो मैं पक्का पागल हो गया हूँ या तुम दोनों पागल हो गई हो, तुम खुद को मिसेस फिट्जराल्ड कहकर क्यों रोक रही हो, अपने आप को क्यों रोकोगी, तुम उसे रोको, ये मिसेस पियर्सन को, मेरी वाइफ को, उस तो कुछ बात बनेगी। फिर वो अपनी वाइफ को घूर के कहता है लगता है तुमने आज ज़्यादा पी ली है। अब मिसेस पियर्सन फिर से गुस्से में उठ जाती है, कहती है से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, दोबारा कहो, दोबारा बोल के दिखाओ, अब देखो फिर क्या होता है। जॉर्ज पियर्सन इंटीमिडेटेड, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब वो थोड़ा डर जाता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बोलता। अब डोरिस आ जाती है धीरे से वहाँ पर, उसको बहुत ही बुरी सी माइजरी में दिख रही है। शी स्टिल वियरिंग द रैप, उसने भी वो रैप पहना हुआ है। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, और वो मिसेस पियर्सन जो है वो सेटी पर बैठी हुई है। मिसेस फिर हेलो डोरिस डियर। अब डोरिस जो है वो बड़े प्यार से बोलती है भाई कैसे हो बेटा, डोरिस बेटा हेलो। अब डोरिस जो है अभी दर्द भरी आवाज़ में बोलती है हेलो मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड बोलते हैं आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट, कहते आज तो तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही थी ना। तो डोरिस यहाँ पे उसका मूड ऑफ होता है, तो एनॉयड हो कहती है व्हाट्स दैट टू डू विथ यू, आपको क्या करना है, मैं जा भी रही थी तो ये मिसेस पियर्सन थोड़ा चीख के कहती है स्टॉप दैट, कहते ज़्यादा मत बोलो मुझे। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती है नो नो इट्स ऑल राइट, ठीक है चलो ठीक है, डांटो मत बच्चे को, ठीक है कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन सख्त में बोलती इट इज़ नॉट ऑल राइट, आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, नाउ आंसर मिसेस फिट्जराल्ड प्रॉपरली डोरिस और गो अपस्टेयर्स अगेन। डोरिस लुक्स वॉन्डरिंगली एट हर फादर। अब यहाँ पर मिसेस फिट्जराल्ड फिर से बोलते हैं ये ठीक नहीं है, मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी से बात करने, मेरी बेटी ऐसे किसी से बात करे, इस तरह से जवाब दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब अच्छी तरह से जवाब दो नहीं तो ऊपर जाओ, चलो भागो यहाँ से, भगा दिया इसको भी। अब ये भी अपने फादर को देख रही होती है। जॉर्ज जो है बेचारा डिस्पेयर में, निराशा में बैठा हुआ है। डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप, कहते मुझे मत देखो, मैं तो हार गया, बिल्कुल हार गया। मिसेस वेल आंसर हो, कहते चलो जवाब दो। डोरिस आई वो मतलब पड़ोसन को जवाब देना है ना, अच्छे से प्यार से तमीज़ से। अब डोरिस सर्कलिंग टोन में कहती है आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, कहती हाँ मैं जा रही थी चार्ली स्पेंस पर अब मैंने कैंसिल कर दिया। देखो कितनी तमीज़ में आंसर दिया है, और पहले क्या आंसर दिया था, पहले इसने ये आंसर दिया था एनोइंग वे में, व्हाट्स दैट टू डू विथ यू। अब इसको डांटा ना अच्छे से, अब इसने कितना अच्छा आंसर दिया। चलो आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मिसेस फिट्जराल्ड जो कि उसकी एक्चुअल मदर कहती है ओह व्हाट अ पिटी डियर व्हाई हैव यू, अरे कितनी बुरी बात है बेटा, तुमने ये कैंसिल क्यों कर दिया अपना प्लान। डोरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, अब वो थोड़ा गुस्से में बोलती है बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर्स हैज़ बीन गोइंग ऑन मी मेकिंग मी फील मिजरेबल एंड सेइंग ही इज़ गॉट अ बक टीथ एंड इज़ हाफ विटेड, क्योंकि अगर आपको सच जानना ही है ना तो मेरी मम्मी मुझे इतना सुना रही थी कि मेरे दिमाग का दही कर दिया एकदम, मतलब मुझे एकदम मिजरेबल फील करा दिया। और वो कह रही थी कि चार्ली के दांत जो है वो बक हैं, मतलब बिल्कुल आगे की तरफ बाहर बाहर निकले हुए हैं, बिल्कुल खरगोश जैसे हैं, और वो आधा पागल है। मिसेस फिट्जराल्ड थोड़ी सी हिम्मत करके मिसेस पियर्सन से कहती हैं ओह यू शुड नॉट हैव सेड दैट, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था मिसेस पियर्सन, ये तो बहुत बुरा बोला। अब ये इसको भी थोड़ा तीखे स्वर में बोलेगी मिसेस फिट्जराल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स, कहते मिसेस फिट्जराल्ड मैं अपनी फैमिली को देख लूँगी, कैसे करना है, मैं अपना घर संभाल लूँगी, आप अपना घर संभालिए। तो जॉर्ज अब थोड़ा सा कलेजे पत्थर रख के कहता है टेकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, कहते हाँ अब वो कहता है कि अब तो तुम पड़ोसन को भी, मिसेस फिट्जराल्ड को भी तुम डांट रही हो, टेकिंग हर ऑफ का मतलब होता है डांट रही हो, एनी अब तुम उन्हें भी क्यों डांट रही हो। तो मिसेस पीटर कहती इवन मोर ग्रिमली, अब वो और गुस्से में कहती है दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, कहते अरे तुमको तो मैं याद दिला दूँ, तुम क्लब जाने वाले थे, सब क्लब में तुम्हारा वेट कर रहे, जाओ यहाँ से, भूल मत जाना तुम।
एंड डोरिस ज़रा रोना, तुम रोना मत फिर से। मतलब वो अब दोनों बाप बेटी को डांट रही है बहुत ज़्यादा। मिसेस फिजरल गेटिंग अप विथ सडन डिसीजन, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। अब मिसेस फिजरल अचानक खड़ी हो जाती है और बहुत पक्के अंदाज बोलती है, बस अब बहुत हो गया, बस हो गया। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर bewildered। डोरिस और अब जॉर्ज और डोरिस देखते हैं उनको एक तरफ, हक्का पक्का होकर देखते हैं उसकी तरफ। टू जॉर्ज एंड डोरिस, now listen, you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. She corrects herself hastily, with Mrs. Pearson. So I'll be obliged if you will leave us alone for a few minutes. I will let you know we have been finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. अब वो दोनों को कहती है मिसेस फिजराल, जो कि एक्चुअली मिसेस पियर्सन है, कि अब तुम दोनों ध्यान से सुनो, मुझे सिर्फ मिसेस फिट्स बोल, मतलब फिट्जराल्ड बोलने वाले जिसका पूरा फिट्स बोल के एकदम से करेक्ट करती है खुद को, मतलब फिट्स बोल के बोलती है, अरे मुझे ना मिसेस फिट्स यानी कि मिसेस पियर्सन से अकेले बात करनी है, तो आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, फिक्र मत कीजिए, ये सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए, कुछ ऐसा है यहाँ जो सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। जॉर्ज उठ जाता है, कहते हैं आई एम ग्लैड समबडी कैन, बिकॉज आई कांट, कम ऑन डोरिस। तो वो कहता है अच्छा है, अगर कोई है जो ये ठीक कर सकता है तो चलो डोरिस चलते हैं। फिर जॉर्ज और डोरिस चले जाते हैं एंड दे गो। मिसेस फिट्जराल्ड मूव्स टू लेफ्ट टू स्मॉल टेबल एंड सिट्स, और मिसेस फिट्जराल्ड जो हैं वो छोटे टेबल के पास बैठ जाती हैं। शी ईगरली बेकॉन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, और वो मिसेस पियर्सन को इशारे से सामने बैठने को कहती है। मिसेस फिट्जराल्ड अब मिसेस पियर्सन यानी कि मिसेस फिट्जराल्ड से कहती है, मिसेस फिट्जराल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। क्या हमें अपने आप को फिर से, अपनी स्पिरिट्स को, उस पर्सनैलिटीज़ को बदल लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो कहती है उसको उठकर, क्यों क्यों करना चाहिए, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कैन बियर इट, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं और मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सेट्स। कहती है, वो कहती है कि थोड़ा और वक्त, इस कड़क व्यवहार की, इस कड़क बिहेवियर की उन्हें ज़रूरत है, वो उन्हें और सुधार देगा, ऑलरेडी फ़र्क पड़ रहा है। कहते नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड। कहती नहीं, अब मैं ये सब और नहीं देख पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा अभी, चलिए अभी हम चेंज बैक करते हैं, प्लीज़ आप करिए, जल्दी करिए मिसेस फिट्जराल्ड। कहते वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ठीक है आप कह रही हैं तो, येस आई डू, प्लीज़ प्लीज़। कहते हाँ मैं आपको इंसिस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ करो, आप प्लीज़ करो। फिर शी स्ट्रैचेज हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसेस पियर्सन टेक्स देम। फिर दोनों टेबल पर हाथ रखे एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला लेते हैं। अब मिसेस पियर्सन कहती है कि चलो शांत हो जाओ, रिलैक्स। फिर मिसेस पियर्सन मिसेस फिजराल्ड एक दूसरे की तरफ देखती हैं। मिसेस फिजराल्ड जो कि मिसेस पियर्सन की बॉडी में है, वो कुछ मंत्र बोलती हैं, एग्जैक्टली एज बिफोर, वही अष्टाडम पता नहीं जो भी मंत्र है ये बोलती हैं। फिर दोनों की बॉडी एकदम लाइफलेस हो जाती है, फिर अपनी असली पर्सनैलिटी वापस आ जाती है। कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, वो वही एक्शन करती हैं, गोइंग लेस एंड देन कमिंग टू लाइफ। उनकी बॉडी एकदम ढीली पड़ जाती है क्योंकि फिर से लाइफ पर्सनैलिटी निकलती है, फिर वापस पर्सनैलिटी एक्सचेंज होकर वापस आ जाती है। बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी, और इस बार दोनों अपनी असली पर्सनैलिटीज़ में आ जाती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड, वेल आई एंजॉयड दैट, मज़ा आया मुझे तो। मिसेस पियर्सन, मुझे नहीं आया मज़ा मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फिर वो कहती है, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, एल्स इट विल हैव बीन वेस्टेड। वो कहती है कि अभी तक मैंने जो किया, अब ध्यान सुनो, कि मतलब अच्छा लगना चाहिए था तुमको, लेकिन अब ध्यान से सुनो, अब उन पर दोबारा से नरम मत पड़ जाना, वरना ये सब बर्बाद हो जाएगा। कहते आई ट्राई नॉट टू मिसेस फिजराल्ड, मतलब ठीक है मैं कोशिश करूँगी कि मैं नरम नहीं पड़ूँ। दे हैव not had as long as I would like to have given them. Another hour or two rough treatment might have made it certain. कहते उन्हें और ट्रीटमेंट देना तो 1-2 घंटे और मिल जाते ना तो गारंटेड हो जाता। आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। कहते मुझे लगता है कि अब भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कैसे समझाऊंगी ये सब क्या हुआ, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो वो सख्त तो कहती है, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। कहते तुम कुछ भी एक्सप्लेन तो बिल्कुल मत करना, सॉरी तो बिल्कुल मत कहना, वरना सब वापस वैसे हो जाएंगे। तुमने खुद कहा था ना कि तुम उन्हें बिगाड़ रही हो और वो तुम्हें वैल्यू नहीं करते। एक कड़क नज़र, एक कड़क टोन, बस इतना काफ़ी है।
तो कहती है ठीक है, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जराल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। कहते ठीक है, आपके लिए ठीक है, लेकिन मिसेस फिट्जराल्ड वो आपके हस्बैंड और बच्चे नहीं है, इसलिए आप ये कह सकते हो। अब वो मिसेस फिट्जराल्ड कहती है नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू आर स्पॉइलिंग देम and then didn't appreciate you, any apologies, any explanation, and you will be start back where you were. I'm warning you, dear. Just give them a look, a tone of voice now again to suggest you might be odd them if you wanted to be, and it ought not to work. And anyway, we can test it. तो वो पूरा उसको बोलती कि तुम कभी कोई माफ़ी मत मांगना, तुमने खुद कहा था कि तुम उन्हें बिगाड़ रही हो, तो वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते। कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस स्ट्रेट रहना है जैसे तुम हो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, एक उनको सख्त लुक चाहिए, उन्हें सख्त वॉइस चाहिए, और नहीं तो वो वापस से वैसे हो जाएंगे। चलो हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती कैसे? कहते वेल, व्हाट इज़ व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू व्हेन दे डोंट डू स्टॉप एट होम फॉर वंस। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि वो लोग क्या करें, आज घर पे रुकें? कहते हाँ हाँ बिल्कुल, येस गिव मी अ हैंड विद सपर। कहते हैं हाँ हाँ वो बिल्कुल घर में रुके और मेरा हाथ बटाएं खाना बनाने में। तो एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू इन्जॉय वेदर दे डू और नॉट, वेदर डू और नॉट। कहते और कोई चीज़ जो तुम इन्जॉय करती हो, जो तुम नहीं कर पाते, जो तुम्हारे लिए नहीं कर पाते, जो तुम उनसे कराना चाहोगी। कहते वेल येस आई लाइक नाइस गेम ऑफ रमी, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। कहते हाँ रमी, मुझे रमी खेलना बहुत पसंद है, पर कोई खेलता ही नहीं मेरे साथ, सिर्फ क्रिसमस पर खेलते हैं। अब मिसेस फिट्जराल्ड उड़ जाती है, दैट्स ऑल डू देन। शी मूव्स टूवर्ड द door, left, then turns. But remember, keep firm. You have had it. She opened the door, calling, "Hoy, you can come in now. Come away from the door and moving right slightly quiet. But remember a firm hand." कहते ठीक है, तुम करना। फिर वो दरवाजे की तरफ जाते हुए कहती है कि पर याद रखना, सख्त रहना जैसा कि अभी तक किया है। फिर बाद दरवाज़ा खोलते उन सबसे कहते हैं कि आ जाओ इधर, और वो लोग आ जाते हैं और उन्हें याद, और यहाँ पर इसको मिसेस पियर्सन को याद दिलाती है कि फर्म रहना है, सख्त रहना है। और साइरल, जॉर्ज और डोरिस डर डर के अंदर आ रहे होते हैं, धीरे धीरे आ रहे होते हैं, मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू इन्जॉय योर सेल्फ। इतने में ये मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम सब अपना अच्छा टाइम स्पेंड करो। देन द फैमिली looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiled much relieved. They smiled back at her. अब ये फैमिली जो पूरी मिसेस पियर्सन को देखती है, जो कि स्माइल कर रही होती है, रिलीव्ड लग रही होती है, और ये भी उसको देख के स्माइल करते हैं। डॉरिस कहते हैं एक्चुअली येस मदर। कहती है हाँ मदर बताओ। तो वो कहती है सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू। कहते हैं क्योंकि जब तुम सब बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर रमी का एक अच्छा सा गेम खेलें। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती है रिमेंबर, मतलब याद रखना, उसकी एक फाइनल वार्निंग। तो वो कहती है नो ऑब्जेक्शंस आई होप। कहते हैं हाँ ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सवाल नहीं होगा आई थिंक, चलो हम खेलते हैं। तो जॉर्ज कहता है नो मदर वट एवर यू से। हम जॉर्ज भी बहुत इज्जत करते हैं, नहीं मम्मी आप जो बोलो। अब मिसेस पियर्सन कहते हैं आई थॉट इट वुड बी नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी विच आई हैव अ टॉक विद योर फादर। वो कहते हैं ठीक है रमी के बाद तुम दोनों बच्चे डिनर बनाओगे, तब तक मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगी। तो जॉर्ज कहता है सूट्स मी, ही लुक्स चैलेंजिंग एट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट यू टू। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वो बच्चों को बोलता है कि तुम लोगों के लिए ठीक है ना, तुम लोग खाना बना लोगे ना? साहिल कहता है हाँ ठीक है, हम बना लेंगे। डोरिस भी हेजिटेंट होकर बोलते कि हाँ ठीक है, मैं भी बना ही लूँगी। और फिर डोरिस कहते ओ थिंक, फिर मतलब वो पूरा बोलने वाली होती है, तो मिसेस पियर्सन उसको तीखे स्वर में कहती है, एकदम तेज़ी से बोलती है कि क्या बोलो, क्या प्रॉब्लम है, मतलब कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो वो कहती नो आई थिंक इट वुड बी लवली। कहती नहीं नहीं, बहुत अच्छा आइडिया होगा कि हम दोनों भाई बहन मिलकर खाना बनाएं। तो मिसेस पियर्सन फिर गुड बाय बोलती है मिसेस फिट्जराल्ड को और कहती है आप फिर आइएगा। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है येस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। कहती है हाँ गुड, वो भी बदले में गुड नाइट बोलती है, गुड बाय बोलती है और इन्जॉय करने को कहती है। फिर मिसेस फिट्जराल्ड चली जाती है और फैमिली जो है अपनी मदर के आसपास, अपनी मदर को यानी कि मिसेस पियर्सन को आसपास घेर कर बैठे रहते हैं, और फिर पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो देखा ये स्टोरी कितनी, ये प्ले कितना इंटरेस्टिंग।
ये प्ले बहुत अच्छी सीख देता है और ये बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही फ़नी है. विद दिस वी कंक्लूड आवर रीडिंग एंड डिस्कशन ऑन ऑफ मदर्स डे बाय G.V. Priestley. This humorous yet powerful play remind us how often mothers are taken for granted and how important it is to value their time, their emotions, and their immense hard work. Through Mrs. Pearson's bold transformation, Priestley teaches us a timeless lesson. Respect at home begins with understanding, gratitude, and shared responsibilities. And if you found today's class helpful, please like the video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel so that they also can benefit from these lessons. So thank you for watching. See you in the next class.